शुक्रिया तमाम लोगों की ज्वाइन करने का। ये पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी headed by Dr. Sayyid Kaisar Anis, our honorary vice chairman and founding president of Pakistan Business and Professional Council, which was established in 2004 by then and then President General Pervez Musharraf. And since then, alhamdulillah, we are thriving, and especially Roshan digital account and Pakistan Stock Exchange and all these things. Dr. Sayyid Kaisar Anis साहब की बड़ी काविशें हैं इसको प्रमोट करने में, और इसके गवाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर और तमाम बैंक के अहदेदारान हैं जो कि इसको मानते हैं, इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जहाँ डॉक्टर साहब की बड़ी काविशें हैं इसके अंदर। और इसी सिलसिले की काविश है कि जो अभी इस वक्त वेबिनार है, वेबिनार शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट 101, इसमें तमाम जो लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस फोरम को ज्वाइन करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें स्पीकर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं, जिसमें जवाद हैदर साहब हैं, मोहसिन रज़ा साहब हैं, सैयद मज़हर अब्बास साहब हैं, और आप खुद फैद आसिफ साहब आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर सैयद कैसर अनीस की इनपुट भी होगी। तो मैं डॉक्टर साहब आपके हवाले करता हूँ। डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा, before we begin, I would like to officially introduce everyone as well. Iqbal Saab. So, सबसे पहले तो thank you very much everyone for joining today, all the speakers and participants. आज का जो वेबिनार है इसमें हमारे साथ जो रिस्पेक्टेबल speakers मौजूद हैं, starting off with Mr. Jawad Hashmi Saab, who is with Pakistan Stock Exchange. He has expertise in capital market development, investor education and regulatory engagement. He plays a key role in promoting financial inclusion, product innovation and transparency, helping strengthen investor confidence and enhancing market accessibility across Pakistan's financial ecosystem. And then we have, of course, Dr. Kaisar Anis Saab, who is an economist and financial expert. He is a seasoned economist with a deep expertise in financial markets, economic policy and research. He offers valuable insights into macroeconomic planning, finance, and investment trends. Also significantly national economic development of Pakistan's financial landscape. Then we have Mr. Sayyid Mazhar Abbas Naqvi, who is a Sharia scholar. He is respected Sharia scholar specializing in Islamic finance and product compliance. He advises leading financial institutions, ensuring adherence to Islamic principles in banking, investments, and capital markets. He also promotes ethical finance through his expertise in fiqh and modern financial systems. We also have Mr. Mohsin Raza Vasaya with us, who is with Central Depository Company, representing the company with a focus on investor protection, digital transformation, and custodial services. He plays a pivotal role in improving capital market infrastructure and accessibility, which drives initiatives that enhance transparency and efficiency for investors across Pakistan. And also, we have Mr. Muhammad Asif with National Clearance Company Pakistan Limited. He specializes in clearing and settlement, post-trade risk management, and market operations. His expertise ensures operational stability and security within Pakistan's capital markets, supporting seamless transaction flows and contributing to a reliable financial system. And so we will, and also, of course, we just found out that Mr. Iqbal Saab is also here. And also we might be able to talk to Mr. Nafar Hussain as well. But we'll definitely start off with Mr. Kaisar, Dr. Kaisar Anis Saab, who will have some words to begin with. Sir, please, if you could just turn on your microphone and begin the program. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much, Fahad, for introducing everyone. And I will introduce in detail. Iqbal Naseem Saab is President of Pakistan Business Professional Council, and he's a very
many years serving on the मुझे दिखाना में नजर नहीं आ रहा. what's up? The camera is not there. No, no. Yeah, he's there. So for many years serving the council and contributed in the वो progress ऊपर of the देखो क्या council. बना हुआ है, वो जो है ना गोल सा, उसके ऊपर देखो क्या कह रहा है. Yeah. So we are very proud of him, and he's contributing on many areas. He's expert, and he works for the Emirates Airline, the famous airline. With that, I welcome to this webinar on Sharia Compliant Investment 101. And I would like to welcome the honorable speakers, Mr. Javed Haider Hashmi Saab, Mr. from Pakistan Stock Exchange, Mr. Mohsin Raza Vasaya from Central Depository Corporation, a famous corporation, Mr. Kashif Alam Khan from NCCPL, and Mr. Syed Mazhar Abbas Zaidi Saab, Executive Committee from Takaful. This is a Sadiq Institute of Islamic Banking Finance. And of course, Mr. Syed Fahad Asif Saab, Senior Manager in Pakistan Stock Exchange. So सर it's a very लिटिल करेक्शन, आज हमारे पास काशिफ साहब की जगह आसिफ साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि उनकी जगह पे हमें एनसीसीपीएल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और सारे सवालात के भी जवाब दे रहे होंगे और प्रेजेंटेशन के हवाले से I'm भी. sorry for that. So Asif Saab, welcome. Welcome, sir. We'll be very happy, Asif Saab, to receive you. Thank We you, are sir. delighted to have you join us during this significant occasion as a part of Pakistan Financial Literacy Week. This week is very important. Of course, this week is the annual initiative organized by the State Bank of Pakistan to promote the financial awareness and inclusion across the country. This year, the event runs from April 14 to 18-25 with the theme of financial inclusion through collaboration and innovation. This is a very important step by the State Bank of Pakistan, who's really leading in all areas and always. This, I will give the detail, is educating individual who was listening. I will welcome all the participants on that, about responsible financial behavior, encouraging the adoption of digital. This is very important. Digital payments, I wish and pray that digital payment all should be done all over Pakistan. And promoting the use of formal financial services, it also emphasizes collaboration among financial institutions, fintech companies, and other stakeholders to improve the financial inclusions. The initiative aims to empower individuals with the knowledge and tools needed to make sound financial decisions, contributing to economic growth and bridging the gap in financial. It's a well said, well targeted, and well promoted by State Bank. This webinar is in collaboration with the State Bank of Pakistan, Central Depository Company, National Clearing Company of Pakistan Limited, Security and Exchange Commission of Pakistan, Austria-Pakistan Association, who is headed by Mr. Shahid Nadeem, and UAE chapter ICAP members, very strong. It's all over around Pakistan. They're contributing in and out and overseas also. And the leaders in the European countries, all are there now at the moment under the leadership of Mr. Shahid Nadeem Saab. This webinar is designed to promote awareness and understanding of Sharia-compliant investment avenues, offering practical and ethical solutions to meet your financial aspirations. Aligned with the objective of Financial Literacy Week, this webinar aims to empower you and the knowledge and tools needed to make informed ethical investment decisions that align with your values. As overseas Pakistani, this will play a pivotal role in the economic development of Pakistan. This will also further understand us, not only to foster a connection to our country, but also empower us to contribute positively to the economy, which very, very much needed. I will, at the end, I'll explain because I attended the convention in Islamabad. I just arrived last night from there. In this webinar, we will explore various investment options that not only align with Islamic values, but also help you achieve your financial goals. We will specifically discuss important investment tools such as the Government of Pakistan Ijara Sukuk
which is a key feature of Islamic finance, and Sharia-compliant exchange-traded funds ETF, known for their flexibility and ability to diversify investments. Of course, Sharia-compliant, as everyone knows, are financial act that adheres to Islamic principle, ensuring ethical and socially responsible practices. So I will not go on detail. I know everyone be knowing about Sharia compliance. There is Sukuk Islamic bond, compliant mutual fund, ETF, real estate asset-based management assessment. And the benefit is the ethical and socially responsible investment, alignment with religious and moral values, and potential for stable and sustainable return. This approach to investing is gaining popularity among both Muslim and non-Muslim investors who value the ethical and financial practice. So I'll not go through all Sharia compliance. I think the team is there to do that. And only I'll mention about the most important is the ETF. Exchange-traded funds is listed on the Pakistan Stock Exchange. These funds provided investors with an opportunity to invest in a diversified portfolio of securities while enjoying the flexibility of trading like individual stocks. ETF is Pakistan hold a basket of securities such as stocks that generally track on underlying index like the KSE 30. ETF offer exposure to multiple securities, reducing risk compared to investing in individual stocks. ETF is a highly liquid, making it easy to enter or exit. It's a great product. I would like to take this opportunity to thank the Pakistan Stock Exchange Chairperson, Dr. Shamshad Akhtar, Mr. Farooq Sabdwari, CEO, and the team of PSET for the support and cooperation for this, which we are doing since 2020. This is a webinar series in line with promoting Russian digital account and investing in Pakistan Stock Exchange. Our support to any initiative that which benefit the overseas Pakistani for protecting the investment and earning income and keeping the funds in their foreign currency. Just for your information, State Bank of Pakistan did an extraordinary work initiating the series of RDA, and for the benefit of overseas Pakistan, till now, nearly 10 billion US dollar has been invested with Pakistan fully protected, and SBP allowed funds on the following, like there's deposit certificate which is repatriable in US dollar, and capital gain, profit, and also you can invest in other sector like RDA product, which is Pakistan Stock Exchange, which is Apna Ghar, which is Apni Car, and all other areas. You'll be happy to know that Pakistan Business Council is always there, and together with State Bank of Pakistan, every quarter we are promoting this fund and explaining updates about the Russian digital account. And the governor and the State Bank appreciate that. Now they have given the task to the council to promote the Soni Dharti, which gives lot of benefit to the overseas Pakistani. I will just mention to you that I returned from Pakistan and I attended the convention where there's many announcements made, and since the overseas Pakistanis all are listening to that, so these are the series measures which they included by them. The most important of them, that they have allowed us for protection of their property. You know, the protection of property for all the overseas Pakistanis. This is a very important subject, and many overseas Pakistanis are suffering on that. The special court been set up in Islamabad, and the decision has to be coming at least within 60 to 90 days, and that is a great decision by the Prime Minister of Pakistan. Similarly, they have allowed to the overseas Pakistani admissions to their children in the medical college, the schools. Also, they will have the number of people every year. They will recognize Pakistani for extraordinary work and remittance, and that, like the way they announced on 14th August and 23rd March. So they will also do that. Then they will do is they will
they will have a special concession on the basis of how you perform from each country, each embassy, each area. The suggestion that they should have a plan for 5 years, that how far you progress in the country for the overseas Pakistani. It was good point by the Overseas Pakistan Foundation, who set up this event, and Mr. Syed Kamal Raza put 14 points on that, which some of the points have been honored by the Prime Minister, and it's a promise that they will do more points on this on this subject. But still, there are many things to do. We need all of you to come forward and work on that. I will just brief about Pakistan Business Professional Council, which is continuing, and we will again add that if there's anything there, we are there to promote the council. We are headed by His Highness Sheikh Nayan bin Mubarak, as you already know that. He's a patron-in-chief and also under the Abu Dhabi Chamber of Commerce. So with that, I will close my speech. If there's any question, we'll be very happy. And I thank Iqbal Naseem Saab for taking care at the closing of the event. Thank you very much. Now over to Fad Saab for further proceedings. Jawad साहब, I think we should start off with you as per the plan. और एक जो मैसेज आया था आपने देख तो लिया होगा, और हम सब I think it's a good idea कि हम कोशिश करें कि उर्दू में जितनी बात हम कर सकें, इवन दो हमें थोड़ी सी आदत हो जाती है कॉर्पोरेट में और ये सब के हम अंग्रेजी में ही कर रहे होते हैं, बट लेट्स जस्ट ट्राई कि उर्दू इंग्लिश मिक्स करके जो जितने अच्छे तरीके से बात करके समझा सकें. But अंग्रेजी में शुरू किया तो मैंने कहा I think we should decide. I'm more better in उर्दू में बात करने में मुझे ज्यादा मजा आता है. इंग्लिश में बहुत मुश्किल होती है मुझे बात करना. चले जिंदाबाद. हम क्या करते हैं कि इससे पहले कि आपको अगले आने वाला मैसेज ये हो कि इतनी सकील उर्दू में बात ना करें, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका कोई मिक्स वर्जन ढूंढ लेते हैं. सो वील बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस. अच्छा डॉक्टर कैसर, आपका बहुत शुक्रिया. डॉक्टर कैसर साहब से तो हमारी शनासाई एंड एफिलिएशन वे बैक व्हेन वी दिस लॉन्च ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट, एंड आई रिमेंबर इट्स बीन ओवर 4 years now, डॉक्टर साहब. एंड माशाल्लाह 5 साल जा रहा है. जी over 5. जी बिल्कुल. 2020 I was just looking at the first show we did. It was probably in December or October of 2020. So you have been doing a phenomenal job in your council. So I'm so very delighted to see you today, and I'm thankful to all the participants. Iqbal साहब, आपका बहुत शुक्रिया. मेरे colleague Asif and Mohsin from National Clearing and CDC. और मेरे लिए जो आज के लिए जो एक एडिशनल डिलाइट है वो मौलाना मजहर अब्बास साहब की मौजूदगी है. Because most of the time when we speak about the Sharia compliant investments, many of those questions or the queries, it's difficult for us to really comprehend. So I'm really glad to see Maulana Saab accompanying us. Thank you very much, sir. मौलाना साहब ना सिर्फ आज हमारे साथ हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलसल हमारी रहनुमाई करते रहते हैं. बिकॉज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि हमारे मुल्क का अगला यानी द विजन ऑफ पाकिस्तान इज टू, एंड इट्स नाउ in the constitution of the country that we need to completely switch to an Islamic financial system by the first January of 2028 हो चुकी है. कैपिटल मार्केट साइड के ऊपर वी हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज जिस पे हम सब लगे हुए हैं. उसमें भी मौलाना साहब हैज बीन वेरी हेल्पफुल. Today's session
for the overseas Pakistanis specifically, there are lot many opportunities. I was just thinking that living in Pakistan तो हमें एक अच्छी खबर का इंतजार होता है, but living abroad ये इंतजार और भी शिद्दत से होता है. Or I mean, we strongly we feel even more strongly when we are outside the country, and I can relate to it because half of my career was as an expat. So this year, अल्लाह के फजलो एहसान से जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, बल्कि इसके आखिर तक भी, we have had so many great news. और वो मैक्रो लेवल पे हो, वो स्टेबिलिटी लेवल पे हो, वो हमारे एक्सचेंज रेट के लेवल के हिसाब से हो, वो रेमिटेंसेस की खबरें हो, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ये सारी अल्लाह के फजलो एहसान से, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स हों. एक दिन गवर्नर साहब होते हैं तो दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने भी शर्फ बख्शा हमें तशरीफ आवरी का, वो भी आए. तो वी वर, आई मीन, इट हैज रियली बीन अ ग्रेट टाइम. और आज का वेबिनार इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ में हम we feel that our overseas Pakistanis they are also equally contributing, and they've been part of it. And today we wanted to highlight few opportunities in the Sharia compliance space to help them to further focus on कुछ ऐसे एरियाज जो कि न सिर्फ अच्छे मुनाफा बख्श साबित भी हुए हैं, साथ ही साथ वो इस्लामिक शरिया उसूलों से मुताबिकत भी रखते हैं. आज का एजेंडा जो हमारा है, हम थोड़ा सा आपको क्विक सा ओवरव्यू दे देंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान का जो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम है उसके बारे में. हम आपको थोड़ा सा एक क्विक सा ब्रीफ दे देंगे, और फोकस हमारा होगा ऑन द, उसके बाद शरिया कंप्लायंट के जो ऑफरिंग्स हैं हमारी, with focus on, we will share some stats also with you, how have been the trends in the overall stock exchange and specifically in these products. And we'll spend more time on explaining the ETFs. And last but not the least is Government of Pakistan Ijara Sukuk, which has come to a reality in the December of 2024 with the efforts of my chairperson, Dr. Shilshad, and then Finance Minister of Pakistan. So with this, I would share my screen if I'm allowed to. So I would request a quick confirmation if the screen is visible. It's visible, sir. Thank you. Visible. Thank you. Shazeb from my team is also assisting me. Thank you, Shazeb, for being there. So Pakistan Stock Exchange. So formally, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a country rich with resources and a lot of opportunities. So today, हमारा topic है the opportunities in the capital market of Pakistan. With a quick disclaimer in the beginning, any information we are presenting today, it is only for the understanding purpose and information only. It's not an investment advice. ये बाकी आप सब पढ़ लीजिए. So I mean, I have to say that. So again, as I said in the preamble, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और पाकिस्तान कैपिटल मार्केट में भी, और इसमें हिस्सेदारी के लिए, इसमें शराकत के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट से बेहतर कोई रास्ता नहीं है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट पे होने वाला नफा या उस इन्वेस्टमेंट के को लिक्विडेट करने के बाद जो पैसे हैं in the same currency that can be repatriated also. This was one of the features which was previously very difficult to really exercise this option, but Roshan digital account made it so very possible and very seamless. I was just talking about a few good news. So these are
a little bit of, a few of them on this screen. I will not spend, I will not repeat this. बट जो एक चीज हमने देखी है ना इस दौरान, जब भी हम ये ऐसे वेबिनार, और डॉक्टर साहब शाहिद हैं इस बात के, कि एफएक्स का बड़ा सवाल हुआ करता था कि हम पैसे भेज तो देते हैं, बट बाय द टाइम वी वांट इट बैक वी ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वैल्यू। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से पिछले 1.5 साल यानी सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स देयर हैज बीन अ ग्रेट स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि द स्टेट बैंक गवर्नर वाज हियर 2 days ago I think, and he announced the record amount of remittances from the overseas Pakistanis। और आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसका फ्लो भी with an additional 38 million dollars coming in the month of March, now it has gone up to $10 billion. So that is the kind of contribution our overseas Pakistanis are making to the economy. As I promised, हम थोड़ा सा ecosystem, because my partners on right and left, the CDC and the National Clearing Company, they're here. So we all three are the integral institutions, infrastructure institutions of the capital market, जिसको हम इकट्ठा capital market infrastructure institutions के नाम से जानते हैं। CDC से आप शायद ज्यादा मुतारिफ होंगे, because Central Depository Company has played the pivotal role in in all this setup for the Roshan Digital account, because that is routed through the CDC. National Clearing Company is responsible for all the clearing and settlement, risk management, collection of tax, and my colleague Asif. I mean, no one can explain it for us better than Asif. Pakistan Stock Exchange, mein, as you know, we have main board, we have a GEM board, which is for the SMEs, the growth market, we call it. We have a cash market, we have futures market, we have, so that is in the equity space. हमारे पास डेट साइड के ऊपर कॉर्पोरेट डेट्स हैं जो TFCs और सुकूक की शक्ल में होते हैं, और हमारे पास गवर्नमेंट डेट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक की शक्ल में है, जैसे डॉक्टर साहब ने प्रीएम्बल में बताया। इसके साथ ही साथ there are two ways of entering the and investing in Pakistan Stock Exchange. One is through the asset management companies, जो कि 22 के करीब इस वक्त हैं और बहुत सारे पैसे मैनेज कर रही हैं. So you can invest through the asset management companies, or you can directly open an account, which is a preferable route where you can have more control over your investments. It's through any of our registered brokers. There are 195 or 96 brokers listed at the stock exchange at the moment, and registered with the Security and Exchange Commission. So any investor can go to either of them, and to any of them, and start investing. Alhamdulillah, most of them offer the online services, which starts from the onboarding till the execution and confirmation. जो आपकी execution होती है, I'm sorry, I should switch. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 531 कंपनियां लिस्टेड हैं, और आप को खुशी होगी सुन के कि इसमें से 55% कंपनियां ऐसी हैं जो इस्लामिक शरिया उसूलों के मुताबिक कारोबार करती हैं. 50% से ज्यादा जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मौके आपके पास मौजूद है. मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो नंबर है, इसका भी 63% से ज्यादा जो है वो शरिया कंप्लायंट कंपनीज के अंदर ट्रेड होता है जी. और इसके साथ आपका PSX, इस वक्त जो हम अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक की बात कर रहे हैं, तो उसका नंबर भी 2.35 खरब पे पहुंच गया है जी. 2.35 ट्रिलियन PKR, which translates into over $8 billion. एवरेज डेली टर्नओवर जो है हमारा, उसमें से भी 70% ऑफ दिस इज थ्रू द शरिया कंप्लायंट कंपनीज. सो जो हाईलाइट हो रहा है इस स्लाइड से वो ये है कि अल्लाह के फजल से हम ऑलरेडी वी आर ऑन अ फास्ट ट्रैक और मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद द सपोर्ट ऑफ ऑल आवर इन्वेस्टर्स हु आर naturally inclined towards the Sharia compliant investments. So there are opportunities
available there. Now, switching to the investment product, quickly, exchange traded fund. डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा बताया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं where you invest in a strategy which is designed by the asset management company. फर्क सिर्फ ये होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं इसकी प्राइस हर वक्त आपके लिए मौजूद होती है यू कैन ऑलवेज बाय एंड सेल ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स these are issued by the asset management companies. So basically it provides a very diversified exposure into the capital market. आप एक शेयर में इन्वेस्ट करने की बजाय एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे ये होगा कि बाय इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज यू आर नॉट टेकिंग एक्सपोजर इन वन कंपनी बल्कि a basket of companies और जब basket of companies का फायदा ये होता है कि that provides you a diversified exposure आपका जो रिस्क है वो जरा मुनकसिम हो जाता है डाइवर्सिफाई हो जाता है सो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं ETFs में operating cost is lower than the traditional open-end funds. Open-end funds जो होते हैं, you must be aware कि जो open-end funds होते हैं, उसमें आप investment commit करते हैं, and then it gets reflected. You start to make money from the time you invest. I mean, from the next day. And जब आपको उसको liquidate करना है, so you need to wait for the day to finish. And based on the day's net asset value आपको वो पैसे मिल जाते हैं तो बाजार के जो उतार चढ़ाव हैं उसमें अगर आप ये डिसीजन करें कि आपको लिक्विडेट करना है तो वो मुमकिन नहीं होता उसके अंदर ETF के अंदर ये मुमकिन है बिकॉज ये हर वक्त स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है और खरीदा और बेचा जा सकता है जैसे मैंने बताया सेकंड फीचर के an ETF is investing in multiple stocks than buying one individual stock. ये भी हम बात कर चुके हैं कि it is instantly diversified across all underlying securities in the basket and those baskets होती हैं वो identified होती हैं बिल्कुल वाज़ेह होती हैं और आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे जिस सेक्टर में या जिस स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना है मैं उसी के अंदर ही जाऊं अभी हमने जैसे बात कर ली कि इसमें अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ ये कुछ हमारे फेमस ETFs जो इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर आपके पास 6 के करीब ETFs हैं जो बहुत ही मंझे हुए रिनाउंड इदारे हैं बैंक्स हैं जिनके हाथ से ये इशू हुए हैं और बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं इस्लामिक स्पेस में आप देखें तो 2 ETFs बिल्कुल इस्लामिक हैं जो ट्रैक कर रहे हैं अपनी गिवन सिक्योरिटीज की एक बास्केट को डेट में अगर आप फिक्स्ड इनकम में जाना चाहते हैं तो उसमें HPL का एक फंड है जो ट्रैक करता है बट ये कन्वेंशनल का है डेट कन्वेंशनल है फॉर शरिया कंप्लायंट डेट आपको इजारा सुकूक की ऑप्शन मौजूद है थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं जैसे आप देख रहे हैं इफ आई पिक अप JS Momentum so this constitutes of 10 stocks in it उन 10 स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट है उसके खास तनासुब से ये उस बास्केट का हिस्सा होते हैं और उसी जो उस बास्केट के अंदर शेयर्स की मूवमेंट है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं वैल्यू के अंदर तो आप मान लीजिए कि अगर आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपका रिस्क बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द कंपनी एंड नॉट द ओवरऑल सेक्टर मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं और आप किसी एक
लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी को चूज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो लिस्टेड आमतौर पे जो सुनी जाती हैं कंपनीज, होंडा कार है, इंडस मोटर्स है, संस्कार इंजीनियरिंग है, हमारी गंधारा ऑटोमोबाइल है। ये सारी कंपनी, अब ये बहुत सी गाड़ियां बनाती हैं। एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने उस कंपनी के अंदर एक्सपोजर लिया जो उस एक सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रही है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बास्केट में एक्सपोजर लेते हैं जिसमें तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर की मतलब तमाम से मुराद ये है कि जो मशहूर मारूफ कंपनियां हैं वो अगर उस बास्केट का हिस्सा हैं, तो आप एक कंपनी में एक्सपोजर नहीं ले रहे बल्कि एक सेक्टर में ले रहे हैं। तो कोई भी नेगेटिविटी जो एक कंपनी को बहुत बुरी तरह से हिट कर सकती है, इट कैन बी एनी फॉल्ट इन द व्हीकल, इट कैन बी एनी नेगेटिव न्यूज इन द मीडिया, एनी अदर नेगेटिव इवेंट, it will not hurt you as much as it can if you have invested only in that company, because now it is a diversified basket. So it was just to explain a little कि ये बास्केट में होने की वजह क्या है। अब देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपको रिटर्न भी अगर अच्छा मिल रहा है तो इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये है, ये जो पहला वर्टिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो दीज आर द ब्रॉड मार्केट बास्केट्स। जैसे हमने देखा था कि इस इनमें कुछ में 14 कंपनीज हैं, तो इस किसी में 9 कंपनीज हैं, किसी में 15 कंपनीज हैं, और आखिरी वाला अगर हम ये ग्रीन वाला देखें तो इसमें 30 कंपनीज हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स वेरियस स्ट्रेटजीज विच आर एक्सप्लेन्ड हियर। ब्रॉड मार्केट, जिसमें आपने ओवरऑल मार्केट से स्टॉक्स की सिलेक्शन की है और उसकी एक बास्केट बना के उसको हमने उसके ऊपर ईटीएफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने स्ट्रक्चर किया और एक इंडेक्स बना दिया है जिसको वो ट्रैक कर रहा होता है, रादर मिमिक कर रहा होता है। इसी तरह से सेक्टोरल इन्वेस्टर है, सेक्टोरल ईटीएफ है, जहां पे ये ईटीएफ आपको एक खास सेक्टर के अंदर एक्सपोजर देता है। इनके तफसीली ब्रोशोर्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि इनके अंदर स्टॉक्स किस तनासब से होते हैं, ये कितनी देर बाद रीबैलेंस होते हैं, इनका रिव्यू क्राइटेरियन क्या है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। इसी तरह से थेमेटिक है। थेमेटिक, इट इज अगेन अ स्ट्रेटजी जिसकी बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। जेएस मोमेंटम फैक्टर फंड, इट बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, it is a composition, it consists of the most active stocks being traded in the company in the market. Islamic equity में जैसे मैंने बताया, Mizan Pakistan the most popular, and now Mahana Islamic has also joined in. And look at the returns. If the market had made say 70%, 80%, because that has been the return for the year, which was very unprecedented, and because of all the updates at the macro level जो मैंने आपसे पहले शेयर की, the return this ETF produced is much higher than the market. See, इसी तरह से ये ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर का फंड है, द बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म better than the market. So it is producing superior returns also, as well as providing you the diversified exposure. Quickly switching to the other opportunities, other opportunity in the government of Pakistan इजारा सकूक। कोई भी कारोबार जो है वो अपने आप को वसी करने के लिए या शुरू करने के लिए दो ही सोर्सेस होते हैं फंडिंग के। या तो आप शेयर्स का इजरा करते हैं, पाकिस्तान कैपिटल मार्केट में जाते हैं और फंड्स वहां से लेते हैं। लेकिन ज्यादा पॉपुलर मीडियम क्या है कि हम लोन लेते हैं। अब लोन आप, जाहिर है फैमिली एंड फ्रेंड्स कितना को आप लोन उसमें कर सकते हैं और कौन देता है। और फिर जो यूएई में बैठा हुआ दिरहम में देता है तो वो ये भी सोचता है कि यार ये मैं रुपए में कन्वर्ट होके हो जाएगा, तो बाय द टाइम ये वापस आएंगे तो ये वैसे 20% कम हो चुके होंगे। पिछले 1.5 साल में ऐसा नहीं हुआ, 2 साल में, लेकिन ये होता है एक। तो इसमें ये होता है कि दूसरी सूरत ये होती है कि डेट इशू किया जाता है। डेट इशुएंस में आपको पता है कि एक फिक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ लोन। यू आर लेंडिंग टू द कंपनी एंड द कंपनी कमिट्स टू अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने आपको देनी है। ठीक है जी। और ये इतना रिस्की भी नहीं होता क्योंकि एवरी चीजें जो है वो पहले से तयशुदा होती हैं।
इक्विटी जो कि ज्यादा एक्साइटिंग एरिया है, इसमें बिजनेसेस आते हैं और अपने आप अपनी वर्थ को प्रूव करते हैं और इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इसमें बेसिकली कंपनी आपको अपनी हिस्सेदारी ऑफर कर रही होती है, सो यू आर owning a it's a part of ownership which is called a share. You are entitled to the money it makes in the form of dividend या तो capital gain, but yes it is a risky asset class. अब जब ये तो मैंने प्राइवेट का बताया कंपनी, इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी फाइनेंसिंग के लिए मार्केट से पैसे जो है वो फाइनेंसिंग लेता है। और ये एक नई चीज जो मैंने बताया कि दिसंबर 2024 में ये जारी हुई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सुकूक जो अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से इशू करते हैं। पहले ये सिर्फ स्टेट बैंक से इशू हुआ करते थे और कुछ बैंक्स थे जो प्राइमरी डीलर की शक्ल में इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। अब इस वक्त जो मैंने बताया 195 के करीब हमारे लाइसेंस ब्रोकर्स हैं। आप किसी भी ब्रोकर्स के साथ अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो भी आप उसी अकाउंट के अंदर जिसमें आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसमें इजारा सुकूक भी खरीद सकते हैं। मैं इसके नॉमिनेशन आपको इसके फीचर्स कुछ बता देता हूँ और फिर थोड़ी सी और बात इस पे करते हैं। ये इस वक्त गवर्नमेंट की गारंटी से इशू होते हैं जी, सो ये इट्स नॉट द रिस्की क्लास लाइक इक्विटीज। डिनोमिनेशन इसकी सिर्फ 5,000 रुपए से भी इन्वेस्ट इसके अंदर किया जा सकता है। इसकी जो टेनर की रेंज है वो 1 साल से लेके 10 साल तक की है। और इसके जो वेरिएंट्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक डिस्काउंटेड इजारा सुकूक है जो कि अगर आपको समझने के लिए कहें तो जो हमारा 12 मंथ्स का ट्रेजरी बिल होता है उसी की मानंद होता है। इसका कूपन नहीं होता, ये कम पैसों पे इशू होता है और फेस वैल्यू के ऊपर मैच्योर होता है। या नहीं यूं कह लीजिए कि 90 रुपए पे इसका इजरा हुआ तो 100 रुपए पे ये रिडीम हो जाएगा। ये है 1 ईयर। उसके अलावा जो हमारे कूपन बेयरिंग है जिसके ऊपर एक प्रॉफिट रेट जो है उसका तयन हो जाता है उसके इजरा के वक्त, उसमें 2 वेरिएंट्स हैं। एक हमारा फिक्स रेट रेंटल वाला है और दूसरा वेरिएबल रेंटल रेट वाला है। इसकी 3 5 और 10 साल तक की मुद्दत के होते हैं एंड दे आर यील्डिंग गुड रिजल्ट्स, गुड रिटर्न्स, प्रॉफिट्स। रेंटल फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बता दी सेमाई एनुअल होता है जी। और इसका कस्टोडियन भी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ही है और इसकी क्लियरिंग भी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ही के थ्रू होती है। सो द वे यू ट्रेड अ स्टॉक, you can trade a GOP Ijara Sukuk through your broker in the capital market. And Dr. Saab, very soon you will hear another great news from the capital market of Pakistan, and that is issuance of Green Sukuk. It is the framework is being approved by the government of Pakistan, and soon we are inshallah targeting under the current leadership to have our first green sukuk also issued, because sustainability, sustainable investing, sustainable climate finance, sustainable investment, that is also one of the strategic agenda for the country and for the capital market as well. The green sukuk is like a environment related. I'm sorry, I'm sorry, डॉक्टर कैसर, शायद मैं आपकी बात नहीं सुन सका, मेरा कनेक्शन शायद फ्रीज। Green sukuk is like an environment related. Environment That's right, related. sir. That's right. That's right. So it's Sustainability. financing of those projects which are environment friendly, which are aligned with the objective of sustainability. उसमें साफ पानी भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स इनको हम इस ग्रीन सुकूक के अंदर इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इरादा है कि इसके लिए भी फाइनेंसिंग जो है कैपिटल मार्केट के थ्रू की जाए। And that is built on the success of GOP Ijara Sukuk. You can see the success
I mean, in 1 year, in any of these auctions, the government had raised to an extent of, to the tune of over 350 billion rupees in one auction. So that has made this mark of 2.35 trillion as of the April auction we conducted last month. बल्कि this start of this month. So आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की GDS का स्पेशल पेज है, उसको आप देखें। उसमें कैलेंडर जो है वो इशू होता है, जिसमें अगली ऑक्शन आई थिंक it is on the 29th of April, I believe. उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो बिल्कुल सीमलेस तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। On this note, I will stop and would once again thank the organizers of this webinar and the participants. बहुत शुक्रिया जी। Over to you, Fahad साहब। थैंक यू जवाद साहब, आपने सारी चीज़ें इतनी डिटेल में बताई, स्पेशली ये सारे ETF वगैरह के हवाले से जो बात चल रही है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी सर। इस वजह से एक तो शरिया वाली चीज़ से वो कनेक्ट हो रही है, दूसरा ये कि बैटल ऑफ द बुल्स का जो कंपटीशन अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ उन लोगों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं किया या रजिस्टर्ड नहीं किया, जो जानते नहीं है। सो बैटल ऑफ द बुल्स बेसिकली एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इन कोलैबोरेशन विद अ नंबर ऑफ ब्रोकर्स एंड CDC NCCPL एंड SECP, इसमें बेसिकली है ये कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग करें। आपसे मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो इंटरेस्टेड हो ये सीखने में कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, अपने पैसों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये करना है कि हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया चैनल्स पे आइए, बैटल ऑफ बुल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे दिए गए लिंक या QR कोड को स्कैन करें और अपने आप को रजिस्टर करवा लें। रजिस्ट्रेशन की सूरत में आपको डिटेल्स भेजी जाएंगी और देन फिर आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। 12th of May दिस कॉन्टेस्ट विल बिगिन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 months। उस 3 महीने में आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, बाइंग सेलिंग करनी है, पोर्टफोलियो डेवलप करना है, और इस तरह करना है कि आप लोगों ने आपस में कॉम्पीट कर रहे होंगे सारे पार्टिसिपेंट्स, और जो पार्टिसिपेंट्स टॉप 10 आएंगे वो विनर्स होंगे। टॉप 3 जो हैं उनको फर्स्ट पे जो है वो 300,000 पाकिस्तानी रुपीस वर्थ के ETFs प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी एज ए गिफ्ट उनको विनिंग प्राइज दिया जाएगा। सेकंड नंबर पे जो विनर होंगे उनको 2 लाख रुपए के ETF दिए जाएंगे, और जो थर्ड विनर होंगे उनको 1 लाख रुपए के ETFs दिए जाएंगे, यानी उनके ब्रोकरेज अकाउंट अगर मौजूद होंगे तो हम वहां उनको दे देंगे, और अगर ओपन करवाने की जरूरत होगी तो वी विल हेल्प देम ओपन देयर न्यू ब्रोकरेज अकाउंट। और इसके अलावा ये तो हो गया टॉप 3, देन 7 रनर अप्स जो होंगे दे विल बी गिवन, उनको 50,000 रुपए पर हेड ETFs जो है वो दिए जाएंगे, जिस तरह से टॉप 3 में मौजूद है। तकरीबन 1 मिलियन के आसपास के ये टोटल प्राइजेस मोरलेस बनते हैं। ये सारी डिटेल्स आप मजीद हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, psx.com.pk। तो ETFs सर, थैंक यू, आपने ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई, और आई थॉट कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं चीज़ मेंशन कर दूं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मिस्टर मज़हर अब्बास नकवी साहब। मज़हर साहब, आई नो यू आर ऑन अ क्लॉक, आपको यहाँ से कुछ और मसरूफियात के सिलसिले में जाना है। सो आई वुड लाइक कि आप अपनी प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच, आपकी प्रेजेंटेशन भी हमारे पास व्यू हो रही है। आप प्लीज़ सर अपनी नॉलेज और ये सारी चीज़ें जो आपने हमारे लिए प्रिपेयर की हैं प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि आप लोग साथ साथ अपने सवालात ज़रूर पूछिए, ताकि जब तक औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अम्मा बअद अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी आवाज? जी वालेकुम जी सर, सलाम। बिल्कुल। आई थिंक आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, प्लीज लेट्स जस्ट बिगिन। मजहर साहब, आपको आवाज आ रही है तो काइंडली कंटिन्यू कर सकते हैं आप। I think
he's Looks got like he got disconnected. जी जी जी, I think so. So मैं ये अर्ज कर रहा था जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कि आप लोग अपनी शरिया स्पेसिफिक शरिया से रिलेटेड जो भी सवालात हैं, नाउ इज़ द टाइम, प्लीज़ उनको मैसेजेस में लिस्ट डाउन कर दीजिए ताकि मुफ्ती साहब जिस जगह मौजूद हैं उनसे सारे सवालात के जवाबात हम हासिल कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमारी मिस हो जाए, बट जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ रह भी जाएगी तो वो हम आपको बाद में एड्रेस कर देंगे। info@psx.com.pk पे आप ईमेल कर दीजिएगा। आउज़ुबिल्लाहि मदर मिनश साहब इज बैक। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीएसएक्स का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने कुछ राइज पेश करने के लिए। यूँ तो तमाम इज़्ज़त माब जनाब जवाद हैदर हाशमी साहब तमाम प्रोडक्ट्स बयान कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा मुख्तसरन कुछ अराइज़ अपने सामईन के लिए पेश कर सकूँ। तमाम मोहतरम सामईन, बिलखुसूस हमारे मुअज़्ज़िज़ पीएसएक्स के साथी मिस्टर इकबाल नसीम, मिस्टर मोहसिन वसाया, मिस्टर डॉक्टर कैसर इनाम साहब और हमारे एचसीएल के तमाम मोहतरम जो साथी हैं, उन सबकी खिदमत में बार्ज़ अदब व एहतराम कुछ आराइज़ पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। शरीय कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट 101 ये हमारा जो आज का मौजू है। इसके ऊपर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुरान मजीद में या इस्लामी तालीमात में माशी तालीमात को बहुत ज़्यादा अहम शुमार किया गया है और बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। यहाँ तक कि मुतअद्दिद आयात और अहदीस में इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है। एक मशहूर मारूफ हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तंसा नसीबका औ हज़्ज़का मिनद दुनिया, कि दुनिया से अपने हिस्से को मत भूलो। और इसी तरह से वो शख्स हाथ जिसका फैला रहे लोगों के सामने, उसको पसंदीदा शुमार नहीं किया गया, बल्कि हदीस में इस तरह आता है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करके कमाने वाला हबीब खुदा है। यहाँ तक कि खुद आइम्मा अहले बैत रसूल माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, आप खुद कसब किया करते। अलबत्ता वो बात जो अहम है वो ये है कि ना हर चीज जायज है, ना हर तरह से कमाना जायज है। जिसको मैं एक आम अंदाज में कहता हूँ कि जब अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं किसी नए प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो ऐसा भी नहीं है कि हर आने वाली चीज हराम है और ऐसा भी नहीं है कि हर नई आने वाली चीज जायज है और उसको किया जा सकता है, बल्कि हमें दो लेवल्स पर आकर किसी भी चीज की कंप्लायंस को समझने की जरूरत है। एक प्रोडक्ट लेवल कंप्लायंस है और एक प्रोसेस लेवल कंप्लायंस है। प्रोडक्ट लेवल कंप्लायंस से मतलब एक मर्तबा एक ऐसी चीज है जिसको शरीयत ने हराम करार दिया, मसलन शराब, मसलन और दूसरे मौज़ूआत, निजासात। इन चीज़ों को जितने भी अदब व आदाब के साथ, उसूल ज़वाबित के साथ, शरई क़वानीन के मुताबिक इसकी खरीदो फरोख्त किया जाए, इसके ज़रिए तिजारत की जाए, ये कभी जायज़ नहीं हो सकती, मादाम जब तक कि ये चीज़ वो चीज़ करार पाएगी जो ममनुआ है। लेकिन एक मर्तबा एक चीज़ फ़ी नफ्से ही जायज़ है, तो क्या इसका फ़ी नफ्से ही जायज़ हो जाना इसके हलाल होने पे दलील है? ऐसा नहीं है, बल्कि किसी चीज़ का जायज़ होने के बाद भी उसका तरीक़ेकार भी वो होना चाहिए जो शरीयत ने बताया है। जब हम नजर करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जानिब, तो हम जो अक्सर मसला देखते हैं वो मसला प्रोडक्ट में नहीं होता, उसके प्रोसेस में होता है। वो प्रोसेस क्या है? मसलन अगर आप, चूंकि उमूमी तौर पे लफ्ज़ इस्लामिक फाइनेंस से लोग इस्लामिक बैंकिंग को जरा ज्यादा तवज्जो में ले आते हैं और इस्लामिक बैंकिंग को जरा ज्यादा समझते हैं और जानते हैं, तो क्या हमें बैंक से एतराज है? कोई बैंक होना चाहिए, बैंक जदीद माशी निज़ाम की जरूरत है। बैंक के होने पर एतराज नहीं है, बैंक के एक तरीके कार पर एतराज है। यानी अगर वो अमल एक तरीके से दुरुस्त कर लिया जाए तो जायज है, और अगर उस तरीके से ना किया जाए तो वो शरई पैरामीटर से बाहर है। गोया शरीयत ने हमें उसूल बताए मामलात में कि कोई भी मामला करने के बुनियादी उसूल क्या है, जिसको मैं एक आम फहम जबान में कहता हूँ प्रोडक्ट और प्रोसेस कंप्लाइंस। प्रोडक्ट मतलब यानी वो चीजें जो ममनुआ है, प्रोसेस का मतलब यानी क्या चीजें नहीं होना चाहिए। तो कुरान मजीद की तरफ नजर करें या अहदीस नबवी की तरफ, तो हमें जो अहम बातें नजर आती हैं वो है कि रिबा नहीं होना चाहिए। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान ने खरीद फरोख्त को हलाल करार दिया और रिबा को ममनू करार दिया। और इसी तरह से हर तरह से खरीद फरोख्त को हलाल करार नहीं दिया गया, हर चीज की खरीद फरोख्त को हलाल करार नहीं दिया गया, बल्कि उस उसूल ज़वाबित बयान किए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में सहाबा कराम को ये तालीमात इरशाद फरमाई कि किस तरह से किसी चीज को बेचा जाए, उसके क्या उसूल है। मसलन जिस चीज को बेचा जाए वो चीज मौजूद होना जरूरी है,
जिस चीज को बेचा जाए वो उस शख्स की मिल्कियत में होना जरूरी है, इस तरह कब्जे की बहसें वगैरह वगैरह। तो कुछ बुनियादी उसूल है, मसलन रिबा ना हो, गरर ना हो, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर मामले का क्रिस्टल क्लियर होना, किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी का ना होना, जो कि एक हदफ भी है किसी भी रेगुलेटर का भी। हमारे जो दोस्त पीएसएक्स से, सीडीसी से, एनसीसीएल से, उनका प्राइमरी रोल बीइंग अ मार्केट रेगुलेटर क्या है, वो ये है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर शफाफियत रहे, उसके अंदर किसी भी किस्म की एम्बिग्युइटी ना रहे। लिहाजा स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। तो लिहाजा रिबा का ना होना, गरर का ना होना, ये कुछ बुनियादी उसूल हैं इस्लामिक फाइनेंस के। मैं उससे बढ़कर आपको जो एक खास बात बताना चाहता हूं, चूंकि प्रोडक्ट्स के ऊपर जरा बात हो चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जब से रस्मी तौर पे इस्लामिक फाइनेंस इदाराती बुनियादों पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे शुरू हुआ, तो हम देखते हैं पाकिस्तान के दो बुनियादी रेगुलेटर है फाइनेंशियल सेक्टर के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2015 में शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क इशू किया था, जो कि 2024 में एक मरतबा फिर से अपडेट करके री इशू किया गया है, जिसके अंदर किसी भी मालियाती इदारे, क्योंकि स्टेट बैंक के डोमेन में कमर्शियल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उस बैंक में किस तरह इस्लामिक शरीयत को इंश्योर किया जाएगा, पूरा मैकेनिज्म दिया गया, जिस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म होता है कि शरिया बोर्ड बनाया जाए, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट हो, शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, और इन तमाम डिपार्टमेंट्स में ऐसे अफराद अपॉइंट किए जाए न सिर्फ शरिया एक्सपर्ट हो बल्कि कन्वेंशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हों। जो अभी तक हमें मुश्किल रही है वो ये रही थी कि हमारे पास कन्वेंशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, दे वर द बेस्ट फाइनेंशियल इंजीनियर्स, they wanted to engineer whatever they want to engineer the financial products, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फाइनेंशियली डेवलपमेंट में बहुत आगे। हमारा मसला फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, हमारा मसला फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और ये बात मैं अक्सर और बेशतर कहता रहा हूँ, हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप बात करें बैंकिंग सेक्टर की या नॉन बैंकिंग सेक्टर की, हमारे पास माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी हैं, बैंक्स भी हैं, हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप हो चुका है, हमारे पास कैपिटल मार्केट है, उसके इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स सारे मौजूद है, रीट्स भी हैं, ईटीएफ्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, पेंशन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव अवेलेबल। अगर आप दूसरे बाज़ ममालिक की तरफ तवज्जो करें तो उनके पास पूरे इतना प्रोडक्ट रेंज मौजूद नहीं है। हमारी जो मुश्किल है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, लोग रिलेक्टेंट है, उनमें से एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट मजहबी सेंटिमेंट है। तो उनके लिए मैं बतौर खास बात करना चाह रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज में शरई उसूलों को इंश्योर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई इद्दा करे, दावा करे कि ये हलाल है, जायज है, वो जायज हो गया, नहीं, पूरे मैकेनिज्म को इंश्योर किया है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले खुद एक शरिया एडवाइजरी कमेटी को बनाया गया। और सबसे खुशआइन बात यह है, मैं अपने सामीन को बताना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी शरिया एडवाइजरी कमेटी में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन को और इंक्लूसिविटी को इंश्योर करता है। तमाम जय्यद उलमाए कराम, तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम की नुमाइंदगी, जो सीनियर उलमाए कराम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी है, ताकि जब कोई शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट डिजाइन किया जाए वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं या ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बिला तफरीक तखसीस काबिल कबूल हो। यही प्रैक्टिस एसईसीपी की भी है, यही प्रैक्टिस पीएसएक्स की भी और दीगर इदारों की भी है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है और इस फिक्र को आगे बढ़ाना चाहिए। तो लिहाजा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो पूरा एक शरिया कंप्लायंस मैकेनिज्म मौजूद है। चूंकि मेरा मौजू इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ बात करना चाहूंगा कैपिटल मार्केट के ऊपर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2023 में बाकायदा शरिया गवर्नेंस रेगुलेशन दी, जो कि डिटेल्ड गवर्नेंस रेगुलेशन है, जिसमें किसी भी कंपनी को किस तरह शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके स्टॉक्स कब शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर होते हैं, किसी भी शख्स या इदारे के लिए शरिया एडवाइजरी सर्विसेज कब देना मुमकिन है, यानी क्या रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है, इसको भी वजह किया गया है। तो लिहाजा ये बात बहुत वाज़ेह है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जितना भी अभी इस्लामिक फाइनेंस के उन्वान से काम किया जा रहा है, ये जय्यद उलमाए कराम की निगरानी में ये तमाम उमूर अंजाम दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम की तब्दीली है, क्योंकि मैं आपके सामने पहले बुनियाद बता चुका हूं कि हमने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो सबकी सब गलत है या ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने सिर्फ इस बात पे एतराज किया कि बास प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। यानी अगर बैंक में रिबा है तो रिबा खत्म करना है, बैंक खत्म नहीं करना। कैपिटल मार्केट्स में शेयर्स की डे ट्रेडिंग में अगर
क़िमार का मसला है, बाज ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें गरर इन्वॉल्व है, तो गरर मसला है, कैपिटल मार्केट मसला नहीं है। तो आज हम देख रहे हैं सुकूक है, बसा औकात बाज लोग एतराज करते हैं कल तक आप मोतरस थे शेयर्स की ट्रेडिंग पर, आज आप सुकूक के नाम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमने उस वक्त भी अर्ज किया था कि ट्रेडिंग गलत नहीं है, बाज तरीके जायज नहीं है। यकीनन ये निशस्त, चूंकि ये तफसीली निशस्त नहीं है जिसके अंदर हर एक सुकूक की नेचर को, उसके अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट को, उसकी शरीक कंप्लायंस को बताया जा सके। अलबत्ता मजमूई तौर पर ये बात मुझे कहते हुए इत्मीनान महसूस होता है कि ऐसे उलमाए कराम जो कि वाकई शरीयत में भी एक्सपर्ट हैं और कॉन्टेम्प्रेरी इस्लामिक फाइनेंस को भी समझते हैं, फाइनेंशियल प्रैक्टिस को, और ऐसे एक्सपर्ट जो आपके सामने भी मौजूद हैं, आपके सामने जो इंशाल्लाह अपने राय पेश करेंगे, जो कि न सिर्फ बेस्ट फाइनेंशियल इंजीनियर्स है बल्कि शरई उसूल और ज़वाबित को भी जानते हैं। और अब हम पाकिस्तान में एक बहुत मुस्बत तब्दीली देख रहे हैं, उसमें एफएससी जजमेंट भी शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी शामिल है, और सबसे पहले गुड विल शामिल है, चाहे वो इदारों की हो चाहे वो अफराद की हो, और लोग तब्दीली चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा सुकूक है, कल तक हम इजारा सुकूक सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे सॉवरेन सुकूक देखते थे, आज कॉर्पोरेट सुकूक है जो लिस्ट किए जा रहे हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तमाम आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। इसके अंदर पीएसएक्स काबिल तहसीन है कि उन्होंने जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर किया है बिलखुसूस ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। अलबत्ता मैं ये चाहता हूं कि बात इस फोरम पे जिक्र करूं, हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को आसान बनाने की जरूरत है। जो अभी मुश्किल है हमारे साथ वो ये है कि एक आम शख्स बहुत जल्दी ट्रैप हो जाता है आसान किस्त, आसान कर्ज के नाम पर, जो एक डिजिटल इंटरफेस देता है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो सिर्फ एक 2000 4000 5000 के लोन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, चूंकि वो एक वेबसाइट पे सिर्फ एक जगह बैठकर एक अकाउंट खोल लेता है। लेकिन जब हम आते हैं इदारों की तरफ, तो इदारों में मुश्किल है। गर्चे में ये बात जानता हूँ कि हमें AML CFT के मसाइल हैं, हमें FATF के कंप्लायंस को पूरा करना है, लेकिन बाज आप जैसे काबिल अफराद मैं समझता हूं उनको बैठना चाहिए, सोचना चाहिए किस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सकता है। आज हम जो मसला देख रहे हैं वो ये कि 20% इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जो वुसअत है 20% है। अगर हम जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको इस्लामिक बेसिस पे शुरू कर दें, जो कि हमारा अनबैंक सेक्टर है 70%, तो शायद ये तब्दीली बहुत आसान होगी और इसको करना भी बहुत आसान होगा। और भी कुछ अराइज थे, प्रोडक्ट्स चुके जवाद साहब जिक्र कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से वो बात जिक्र करना नहीं चाहूंगा। अलबत्ता पाकिस्तान में, पाकिस्तानी तनाजुर में और आलमी एतबार से ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो न सिर्फ एक्सपर्ट हैं अपने फनी एतबार से, शरिया में फाइनेंशियल एक्सपर्टीज रखते हैं, बल्कि वो इस कॉज के साथ सिंसियर हैं। तो मैं अपने सुनने वालों को इस बात की तरफ रग़बत दिलाना चाहूंगा कि अगर उनके पास कोई ऐसा वेन्यू आता है जो शरीय कंप्लाइंट है, तो उसकी शरीय कंप्लाइंस को आप इंश्योर करें कि शरीय कंप्लाइंस किसके जरिए है, जिन इदारे के जरिए, क्या वो रजिस्टर्ड है, उनके पास खुद लाइसेंस है। अगर ये सब चीजें मौजूद हैं तो प्लीज बी assured that the product is compliant and you can invest in that. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity to present my ideas in front of you. Thank you so much. Over to you, Fahad साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया और बहुत अच्छा समझाया। बस एक चीज, क्योंकि आप निकल रहे, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में है तो वो प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं सबको एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जस्ट आपका ये कि इस पे कमेंट कर दीजिए कि सब शरिया कंप्लाइंट प्रॉफिट है। जी फरमाएं। जो आपका इस्लामिक सवाल बैंक वाज़ेह नहीं हुआ, पाकिस्तान, अगर आप दोबारा रिपीट करना पसंद फरमाएंगे। हाँ जी, ये इस्लामिक बैंक जो है पाकिस्तान में, वो जो प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं एंड ऑफ द ईयर में एक परसेंटेज, और वो क्रेडिट कर देते हैं सबके बैंक अकाउंट में, क्या ये सब शरिया कंप्लाइंट है? देखिए, जो एक बहुत मिसकंसेप्शन होती है वो होती है कि प्रॉफिट को जब हम डिसाइड करते हैं, बाज एक जबान ज़दे आम बात है कि प्रॉफिट को डिसाइड कर देना किसी भी ट्रांजैक्शन को नॉन कंप्लाइंट बना देता है। तो देखिए, प्रॉफिट दो तरह से डिसाइड हो सकता है। एक मतलब प्रॉफिट डिसाइड होता है कि जो भी आउटकम होगा मैं उसका परसेंटेज आपको दूंगा। जाहिर है कि बैंक में इस तरह से नहीं होता, क्योंकि बैंक एक बहुत ही रेगुलेटेड सेक्टर है। वहां पे जब आप फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं तो एक रेट के ऊपर कर रहे होते हैं, जब आप डिपॉजिट ले रहे होते हैं एक रेट पे लेते हो। तो बैंक के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है ये बताना कि आपके कैपिटल के ऊपर मैं आपको कितना प्रॉफिट, अप टू कितना प्रॉफिट दे सकता हूँ। मसलन मैं एक बैंक हूँ, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, मुझे पता है जो मेरी फाइनेंसिंग रेट है वो 20% है,
तो मेरे लिए बड़ा आसान है ये बताना कि अगर मैं आपसे पैसे लेता हूं तो मैं 18% अपना इसके अंदर स्प्रेड रखकर आपको दे सकता हूं। लेकिन शरीयत इस बात पे क्या, शरीयत का क्या ओपिनियन? शरीयत ये कहती है कि देखिए, इन केस अगर लॉस हो जाए फिर क्या होगा? क्या प्रॉफिट का डिक्लेयर या डिसाइड कर देना हराम है, या इन केस ऑफ लॉस भी प्रॉफिट देना जरूरी है? शरीयत ये कहती है कि नहीं, अगर आप मसलन मैं और आप कोई कारोबार करते हैं और मुझे पता है कि मेरे कारोबार की कंडीशंस क्या चल रही है और मैं कहता हूं कि मैं आपको आपके कैपिटल के ऊपर 15%, 20% कमा के दे सकता हूं, और आप कहते हैं ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाता, क्या अब भी मैं पाबंद हूं शरीयत बार से कि मैं प्रॉफिट दूंगा? शरीयत कहती है नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। हाँ, अगर अब भी ये पाबंदी हो कि अब मुझे वो प्रॉफिट देना है जो मैंने डिक्लेयर किया है, बावजूद इसके कि मुझे लॉस हुआ है या मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, अब ये शरन जायज नहीं है। ये गोया वो कर्ज है जिसके ऊपर एक मनफात मशरूत देना जरूरी है। इस्लामिक बैंक्स में जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है वो इस बुनियाद पे किया जाता है कि क्रेडिट एनालिसिस होते हैं, चूंकि एक रेगुलेटेड सेक्टर है। लेकिन अगर इनकेस लॉस हो जाए तो बाकायदा शरिया बोर्ड के पास ही रिपोर्ट जाती है और वो लॉस भी पूल पर चार्ज किया जाता है और उसकी बाकायदा कंप्लायंस को शरिया बोर्ड इंश्योर करता है। उन्होंने एडवांस में नहीं बताया, वो हमेशा आखिरी जमा एंड पे बताते हैं कि ये प्रॉफिट है या लॉस है जो भी। तो अगर बैंक आखिर वाले दिन बता रहा है कि इस साल का ये प्रॉफिट आपको है, जो इन्वेस्टर को नहीं पता था कि कितना पैसा मिलेगा। नॉर्मली अगर वैसे तो आजकल जैसे स्टेट बैंक का रेट एक्स है तो उसको पता है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा हर क्वार्टरली या हर 6 मंथली। लेकिन जब आप इस्लामिक बैंक में आप डालते हैं तो आपको नहीं बताएगा कि कितना पैसा हम एंड ऑफ ईयर पे देंगे, और वो आखिरी दिन कहेगा ये पैसा आपके हैं। तो उसका सवाल था कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं, ये अच्छा, सवाल। वैसे जो आप जिक्र कर रहे हैं ये कभी मेरे सुनने में नहीं आया कि कभी कोई डिपॉजिटर बैंक के पास जाए किसी भी प्रोडक्ट में और बैंक उसको प्रॉफिट रेट डिक्लेयर ना करे। अगर इस तरह की कोई बात है, जाहिर इसको देखा जाना चाहिए। अलबत्ता देखिए, दो तरह से प्रॉफिट की बात हो सकती है। एक मर्तबा बैंक का जो नेट प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स की निस्बत से, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो बात अलग है, उसका तो आखिरी में ही डिविडेंड और सारी सूरत हाल होती है। लेकिन अगर बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ डिपॉजिटर, मैं बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाता हूं तो बैंक हमेशा अपफ्रंट आपको प्रॉफिट बताता है और बैंक ये बताएगा कि वो क्या प्रॉफिट इस आपकी इन्वेस्टमेंट पे देने वाला है और उसके इन्वेस्टमेंट टेनर के एतबार से। तो जाहिर है कि मेरे अभी तक इत्तला में कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर बैंक इन्वेस्टर को यानी डिपॉजिटर को प्रॉफिट रेट अपफ्रंट ना बताएं। नॉर्मली ऐसा तो नहीं बताते, वो कहते हैं आखिर में बताएंगे। नहीं, तो फिर मेरे ख्याल में उस बैंक की बाकायदा अगर कोई ऐसा केस हो उसको नोट किया जाना चाहिए और फिर रेलेवेंट अथॉरिटीज को भेजा जाए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन 2012 का, जिसमें कैटेगोरिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस बात को डायरेक्ट करता है और बैंकों से तकाजा करता है कि आप अपने प्रॉफिट रेट भी डिक्लेयर करेंगे और जब किसी भी इन्वेस्टर को आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको पहले आगाह करेंगे कि उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा। फिर तो इस्लामिक बैंक ना रहा ना, जी, फिर तो इस्लामिक बैंक ना रहा ना, फिर तो इस्लामिक बैंक वो हुआ नहीं ना। बाज औकात हम बाज प्रैक्टिस, अगर एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुसलमान नहीं रहा, उसका अमल बुरा हो सकता है। लेकिन हम बाज औकात बहुत जल्दी कर देते हैं ये फैसला करने में कि वो इस्लामिक नहीं रहा। हम ये कह सकते हैं बाज प्रैक्टिस ठीक नहीं है। हाँ, बाज औकात होता है कि जो पॉलिसी बेचने वाला है, प्रोडक्ट बेचने वाला है, वो एक स्टाफ है, सेल स्टाफ है, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई तो मसला उसके नॉन इस्लामिक होने का नहीं है, मसला ट्रेनिंग का है, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। हाँ, मेक श्योर किया जाएगा कि कंप्लायंस का निजाम हो। लेकिन अगर कोई कोताही है जिसकी वजह से भी है, उस कोताही की वजह से असली मकसद फौत नहीं होता हाथ से, तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसे इंस्टांसेस हुए और आपके तजुर्बे में हैं तो ऐसा नोट होना चाहिए और ये चीज इसके ऊपर काम होना चाहिए और ये चीज बेहतर होगी यकीनन। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, एक सवाल ये आया हुआ है कि कैन वी प्योरीफाई मनी इफ इन्वेस्टेड इन अ नॉन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि किसी ऐसी जगह पे मैंने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की है जो कि लेट्स से कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं इसको आई वांट टू कन्वर्ट, लेट्स जस्ट से कन्वर्टेड इनटू अ शरिया कंप्लाइंट वो, बट क्योंकि वो नॉन शरिया में था तो शायद नॉन हलाल हो गया, खुदा ना खास्ता, या और इस अच्छा तरह का कोई देखिए, मामला, उस पर अगर प्लीज थोड़ा कोई बताइएगा। ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो डिक्लेयर्ड नॉन कंप्लाइंट है, मसलन जिसमें वाकई सूद का मसला है, हाँ हम इस बात पे बहस कर सकते हैं
कि सूद कहाँ है कहाँ नहीं है, और ये एक तवील बहस है। अभी इस वक्त का मौजू नहीं है कि हम बात करें कि आया मॉडर्न बैंकिंग इंटरेस्ट है या नहीं। इसके ऊपर एफएससी का डिसीजन मौजूद है, और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने सुनने वालों से कि वो उस डिसीजन को पढ़ें, उसमें तमाम एतराजात लिखें। लेकिन अगर मैं ये हाइपोथेसिस अपने लिए इस बुनियाद के ऊपर बात करूं कि मसलन बाज ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि नॉन कंप्लाइंट है, डिक्लेयर्ड नॉन कंप्लाइंट है, और मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो जाहिर है कि जो नफा होगा वो जायज नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं जो प्रिंसिपल है वो भी नाजायज हो गया। मसलन मैंने 1 लाख रुपए लगाए कहीं पे, और 1 लाख रुपए जब वो वापसी आते हैं और मैंने कहा कि मुझे ये इत्तला हुई कि भाई ये नॉन कंप्लाइंट है, तो वो जो 1 लाख रुपए वो मेरे हैं, वो हराम नहीं हो जाते। जाहिर है कि वो 1 लाख रुपए जब भी मुझे मिलेंगे तो मैं कहीं भी उसको इस्तेमाल करूं वो मेरे हैं। उसके ऊपर मिलने वाला जो नफा है, अगर वो डिक्लेयर्ड हराम है, मसलन आपको यकीन है कि ये हराम है, मसलन जैसे बाज बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं या हमारे बाज डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसका नफा आपकी मिल्कियत में नहीं है, क्योंकि माले हराम मिल्कियत में नहीं आता। अब जाहिर है कि अब आप क्या करेंगे इस पैसे का, या जला दीजिए। जाहिर है कि ये इसका कोई सही तर्ज नहीं है। हमारे पास मुताद्दिद रिवायात है। मसलन एक ऐसा वाकया मिलता है कि जब जंग बदर के वाकये से पहले गालिबन बाज ऐसे अम्वाल थे, मालूमात थी, जो रसूल माब की इजाजत से पहले सहाबा कराम ने अपने कब्जे में ले लिए, अपने इख्तियार में ले लिए। अब उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता था, तो रसूल माब ने कहा ये कैदियों को दे दो। तो गोया एक कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि ऐसा माल कि जो आपके पास नॉन कंप्लाइंट तरीके से आए, आप गुलू खलासी के लिए, उससे जान छुड़ाने के लिए क्या करें, कहा उसे आम इंसानियत के नफा के लिए खर्च कर दीजिए, लेकिन कतई तौर पे इससे कोई सुए इस्तेफादा ना करे कि इंसान जानबूझकर फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट करे और उसमें से पैसा आए तो वो कहे मैंने बहुत नेक काम किया है। ये नेक काम शुमार नहीं होता, ये कोई बाइसे अजर नहीं है, बाइसे सवाब नहीं है। छठे इमाम सादिक के दौर में एक शख्स मशहूर था कि वो बहुत नेक काम करता है। इमाम ने देखा कि पूछा कि भाई कैसे नेक काम करता है, तो देखा वो एक रोटी चोरी करता है और फिर किसी को जाके सदका कर देता है। इमाम ने कहा तुम तो चोरी कर रहे हो। तो उसने कहा अगर कोई नेक काम करे तो उसे 10 सवाब मिलता है, और गुनाह करे तो 1 गुना मिलता है, तो मैंने 1 गुना करके 9 सवाब ले लिए। आपने फरमाया कि नहीं, जिसकी बुनियाद गुनाह हो कि उसको सवाब नहीं हो सकता है। तो अगर कोई शख्स वाकई चाहता है कि इस्लामिक की तरफ आए, पहली बात प्रिंसिपल उसका प्रिंसिपल रहेगा। प्रॉफिट की जहां तक के रह गई बात, अगर तो उसका प्रॉफिट मुअय्यन है कि कौन सा प्रॉफिट है, यानी 10,000 20,000 उसको पता है, तो जाहिर है कि वो चैरिटेबल पर्पसेस में जाएगा और उसके अंदर वो इख्तियार रखता है कि जहां उसको सही लगे वो दे सकता है, यानी अगर मसलहत दुरुस्त है। और अगर उसको पता नहीं है, मसलन उसको पता नहीं है कि मेरे माले हलाल में कितना हराम मखलूत हो गया है और वो चाहता है इससे जान छुड़ाना, तो फिक़्ह इमामिया के नजदीक अगर वो उस माल का खुम्स अदा करे मजमूई तौर पे, तो खुम्स अदा करने के बाद जो बाकी मानता है, यानी अगर मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हैं और मुझे नहीं पता इसमें हलाल कितना है हराम कितना है, बावजूद इसके कि मैंने गौर व फिक्र किया और मुझे नहीं पता, अब उसका एक तरीका हलाल हो हराम अगर माल मखलूत हो जाए, उसका एक तरीका खुम्स है। तो उसका 20% अगर खुम्स दे दिया जाए, ये फिक़्ह इमामिया के मुताबिक अलबत्ता, यानी दीगर मकातिब फिक्र के उलमा से रब्ता किया जा सकता है कि उनकी क्या राय है इसके अंदर। लेकिन अगर डिक्लेयर्ड कोई आमदनी हो, हिस्सा हो कि ये 5,000 जो इजाफा मिला है, जाहिर है उसकी मिल्कियत नहीं है और उसका शरई एतबार से वो शख्स मालिक नहीं है, उसे खैर के मसारिफ में खर्च किया जाएगा। शुक्रिया। अच्छा, जैसे हम साहब आपने भी जिक्र किया डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट का, उसी से रिलेटेड एक सवाल ये आया हुआ है कि शरिया कंप्लायंस जो है, क्या वो सेम है अक्रॉस द बोर्ड या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स के हिसाब से वेरी करते हैं शरिया के लॉज? इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिएगा प्लीज। मजमूई तौर पे अगर बात करें तो मजमूई तौर पे मुश्तरकात ज्यादा हैं। यकीनन ये बात हो सकती है कि किसी एक मकतब फिक्र की राय और दूसरे मकतब फिक्र की राय एक है, अलबत्ता उनके मबानी अलग हो सकते हैं, उनकी दलील अलग हो सकती है। लेकिन अगर मुआमलात में बात करें, बिलखुसूस इस्लामिक फाइनेंस के तनाजुर में बात करें, तो आज आपके सामने ईरान, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान, जहाँ 100% इस्लामी बैंकारी का निज़ाम है, और दूसरा आपके सामने एक सूडान एक मिसाल हुआ करता था, और दीगर ममालिक है। पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपनी शरिया एडवाइजरी कमेटी में मकतब इमामिया की नुमाइंदगी भी है, अहले सुन्नत मकातिब हमारे बिरादरान अहले सुन्नत से बरेलवी उलमा की भी, देवबंदी उलमा की भी है, जो कि मकतबी एतबार से और फ़िक़ही एतबार से एक ही मकतब है, अलबत्ता इसलिए कि इंक्लूसिविटी हो और डाइवर्सिफिकेशन हो और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। तो अगर कोई इस तरह का इख्तलाफ होता भी है तो उलमाए कराम इसमें डेलिब्रेशंस करते हैं, बात करते हैं, किसी ऐसी राय को इख्तियार करते हैं जो तमाम मकातब के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह हो या कबूल कर ली जाए। मसलन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमारी बहस थी किसी खास मौजू को लेकर, शेयर्स की डे ट्रेडिंग पे, तो हमने वहाँ डेलिब्रेशंस की, अपने नुक्ता नज़र को पेश किया, तमाम उलमा ने अपने नुक्ता नज़र को पेश किया, और जब हमने इत्तेफाक किया तो एक ऐसे नुक्ते पे इत्तेफाक किया जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक था। तो हमारी अक्सर व बेशतर कोशिश ये होती है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में आए तो ऐसा हो जिसके ऊपर तमाम मकातिब का इत्तेफाक हो,
गर्चे बाज जुजी इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये बहुत शुक्रिया हम साहब आपका वक्त निकालने अच्छा के लिए। बयान किया, अ, बहुत अच्छा बयान किया। बेशक। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ विल मूव ऑन सबका टू आवर शुक्रिया, मैं नेक्स्ट जाना गेस्ट। चाहूंगा, बराए मेहरबानी। सर प्लीज, आई थिंक यू आर मोर वेलकम टू। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपके लेटर ऑन जो पार्टिसिपेंट से कोई सवालात हों तो वो हम तक पहुंचाइए, हम उसके आंसर्स कोशिश करेंगे आपको आप तक पहुंचाने की इंशाल्लाह ताला। मिस्टर मोहसिन रजा वसाया साहब, प्लीज इफ यू कुड शेयर योर प्रेजेंटेशन विद अस एंड लेट्स जस्ट see what you have for us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम सीडीसी टू ऑल स्पीकर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्से में जो टॉपिक आया है वो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। तो इससे पहले कि पे जो है नॉर्मली लोग ये समझते हैं और लोगों के जहन में सवाल आता है कि बेसिकली सीडीसी है क्या। तो चूंकि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी मनाया जा रहा है तो आई वांट टू प्रेजेंट सीडीसी इन 2 मिनट्स कि जैसे ही नाम ही से वाजह है कि डिपॉजिटरी, सेंट्रल डिपॉजिटरी, और अगर बिल्कुल आसान सतह पे इसको बयान किया जाए जो जनरल पब्लिक के लिए, कि जिससे जो बैंक्स होते हैं उसमें जो है पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये जो है वो डिपॉजिटरी के नाम से ये सेंट्रल डिपॉजिटरी शेयर्स डिपॉजिट किए जाते हैं। तो अगर बिल्कुल इसको ईज कर दें कि शेयर्स की डिपॉजिटरी को जो जगह है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है वो मकाम है इसका। सितंबर 1997 में जो है ये सीडीसी लॉन्च हुआ था और उसके बाद जो है वो सीडीसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इनिशियली जो ये डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो लॉन्च हुआ था जिसमें शेयर्स की जो है डिपॉजिटरी थी, लेकिन फिर जो है वक्त को देखते हुए और फिर जो है चैलेंजेस को देखते हुए और कैपिटल मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फिर इसमें दीगर फंक्शन और दीगर बिजनेस जो है वो एडिंग किए गए। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टी बिजनेस, हम कस्टडियन है, ट्रस्टीशिप आपके 90%, इनफैक्ट मोर देन 90% जो म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स हैं ट्रस्टीशिप है वो सीडीसी उसका कस्टोडियन है। शेयर रजिस्ट्रार सर्विस, हम रजिस्ट्रार भी हैं, और डीएसएस सर्विस हमारी डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विस। इस तरह बैक ऑफिस अकाउंटिंग सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी सीडीसी ने जो है लॉन्च किए हुए हैं। इमलाक फाइनेंशियल्स भी सीडीसी का एक जो है वो खासा है कि अब हमारे थ्रू जो है इमलाक फाइनेंशियल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ फोकसिंग ऑन द पॉइंट के रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए जो सीडीसी ने कारनामा अंजाम दिया है, बेसिकली रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए सीडीसी जो है वो एक हब है जो कनेक्ट करता है क्लाइंट्स को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को कनेक्ट करता है टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिसमें बैंक्स है, पीएसएक्स है, नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड है, इन तमाम लोगों के दरमियान जो एक कनेक्शन पैदा करता है वो सीडीसी करता है, अगर इजी अल्फाज में कहा जाए तो। 2020 में जो है ये इनिशिएटिव लिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इसको अगर हम इन डेप्थ देखें कि अगर किसी एनआरबी को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए क्या तरीकेकार है। ये यहाँ पर स्लाइड शो भी हो रहा है, इसमें देखें दिखाया गया कि 3 बिल्कुल इजी स्टेप्स है कि आप जब बैंक में जाते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट आपके पास है बैंक का, तो आप जैसे ही वहां पर जाते हैं तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट वहां पे एक ऑप्शन आता है। तो जैसे ही यहाँ पर टिक करते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक को आपने दिए हुए होते हैं वो सारे के सारे जो सीडीसी को ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर हम इन 3 स्टेप्स की पहले बात करें कि देखिए कंसेंट टू शेयर अकाउंट डिटेल्स, कि उसमें एनआरपी जो अपना कंसेंट देता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है कैपिटल मार्केट में, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आती है उसको चेकआउट करता है वो, और फिर अपना जो ट्रेडिंग ब्रोकर है कि किस ब्रोकर के थ्रू मुझे ट्रेडिंग करनी है वो सेलेक्ट करता है। उसके बाद ये अब इन 3 स्टेप जो हम लिखे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो देख लेते हैं कि जैसे मैंने अर्ज की कि जैसे ही वो ये ऑप्शंस तीनों सेलेक्ट करता है तो जितने भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो सीडीसी को चाहिए, और ये ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो है वो
मेजर इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट की है वो हमें चाहिए होती है, तो बैंक से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है हमें सीडीसी के पास आ जाती है। जैसे ही ये बैंक से इंफॉर्मेशन सीडीसी के पास आती है, तो सीडीसी जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो नेशनल क्लियरिंग को ही पास ऑन कर देता है, और जो ब्रोकर जो उसने चूज किया हुआ होता है क्लाइंट ने ट्रेडिंग करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स वहां भी सबमिट कर देता है। अच्छा, नेशनल क्लियरिंग जो है अपना यूआईएन क्रिएट कर देता है, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो आसिफ बताएंगे आपको जब उनकी टर्न होगी। ब्रोकरेज हाउस जो है जैसे ही डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाते हैं तो वो उसकी ड्यू डिलिजेंस करता है और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेता है। अगर उसे ईडीडी एक्सटेंडेड ड्यू डिलिजेंस करनी होती है तो फिर वो क्लाइंट से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लेता है। इसके साथ ब्रोकर का जो कमीशन स्लैब होता है कि जो कस्टमर जो है वो एग्रीड करता है, वो ब्रोकर जो है कस्टमर से एनआरपी से जो है कॉन्सेंट ले लेता है। अच्छा, ये जितनी भी सारी चीजें हैं कि सीडीसी जो है एज अ हब, ब्रोकर, नेशनल क्लियरिंग, बैंक, इनके दरमियान जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने टाइमलाइन दी रखी हुई है 24 बिजनेस आवर्स। 24 बिजनेस आवर्स में ये पूरा फंक्शन पूरा हो जाता है, और जो क्लाइंट के पास जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी तो ट्रेड करने के लिए कि उसको अपना लॉगिन यूजर आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए और मजीद ट्रेडिंग पोर्टल की चीजें चाहिए, वो सारे के सारा जो है सीडीसी जो है क्लाइंट को ईमेल कर देता है। ये हमने आखिरी लाइन में हाईलाइट भी किया हुआ है कि कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग विद इन 24 बिजनेस आवर्स ऑफ रिसीविंग एनआरपी इंफॉर्मेशन। अकाउंट ओपनिंग पैकेज जो है वो क्लाइंट को ईमेल चला जाता है, जिसमें उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह सब मौजूद होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, ये कुछ आरडीए की जो खुसूसियात है कि इस वक्त सीडीसी जो आरडीए को जो सर्विसेज दे रहा है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो क्या क्या है। अच्छा, ये सारी सर्विसेज कि जो एक नॉर्मल अकाउंट होल्डर पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी तरीके से जो ट्रेडिंग का उसको फ्लेवर चाहिए, उसके दरमियान उसको जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी सीडीसी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसमें से मेजॉरिटी यहाँ पे लिखी हुई है कि जो भी ट्रेडिंग की चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको बारी बारी चले कि इंस्टेंट क्रेडिट ऑफ फंड्स फॉर ट्रेडिंग, जैसे ही क्लाइंट अपने बैंक से पैसे सीडीसी को ट्रांसफर करता है, एक चैनल बनाया हुआ है कि हर बैंक के पोर्टल पर सीडीसी का अकाउंट टैग है। जैसे ही क्लाइंट एनआरपी वहां पर उस अपने पैसों को ट्रांसफर करता है सीडीसी के बैंक अकाउंट में, तो वो पैसे जो है प्रोसेस के थ्रू क्लाइंट के ट्रेडिंग अकाउंट में रिले हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने अगर ₹1,00,000 दिए, तो जैसे ही उसे बैंक से ट्रांसफर किए सीडीसी के डेजिग्नेटेड अकाउंट में, तो क्लाइंट को है ट्रेडिंग पोर्टल पर विद इन फ्यू मिनट्स, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, विद इन फ्यू मिनट्स जो है उसको अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे वो पैसे अपने होना शुरू हो जाते हैं कि यार मेरे पास ₹1,00,000 है, उससे वो ट्रेडिंग कर सकता है। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स जो भी सेटल करता है वो T+2 इस वक्त जो मार्केट मैकेनिज्म है, बाय सेल जो भी करता है वो सीडीसी उसको सेटल करता है। कैश की कस्टडी भी सीडीसी के पास होती है एनआरपी की, और सिक्योरिटीज की कस्टडी भी सीडीसी के पास होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार पैसे तो मैंने ट्रांसफर कर दिए, अब मुझे वापस चाहिए, रिडेम्पशन करनी है, पैसे मुझे अगर वापस चाहिए तो लगता है कि मुश्किल तरीकेकार होगा। नहीं, उसमें भी हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है, और इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफ भी करेंगे, इमीडिएट विड्रॉल ऑफ फंड्स इन क्लाइंट बैंक अकाउंट। अच्छा, ये जितना मैंने भी कहा है ना, जितना कहना आसान है, करना भी उतना ही आसान है कि जस्ट इट्स ऑन वन क्लिक कि क्लाइंट ने वहां से अपनी रिक्वेस्ट सबमिट की, हमारे पास डे टू उसकी रिक्वेस्ट आई कि मिस्टर ABC ने जो है वो ₹1,00,000 मांगे हैं, वी जस्ट वेट इट फ्रॉम द लेजर ऑफ दैट क्लाइंट। अगर उसके ₹1,00,000 मौजूद होते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू वो पैसे जो है उसका जो डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है उसमें पैसे वो चले जाते हैं विद इन मिनट्स जो है वो, जैसे वो एक टाइम फ्रेम है वो खत्म होता है, वो पैसे उसके अकाउंट में, क्लाइंट के अकाउंट में चले जाते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड डिसबर्समेंट बोनस, लोग कहते हैं कि मैंने ट्रेडिंग तो कर दी और मैंने पैसे दे भी दिए और मुझे मिल भी गए, अब डिविडेंड जो मुझे मिला वो मुझे कैसे मिलेगा। तो फिर इसका भी हल सीडीसी के पास ही है कि जैसे ही डिविडेंड किसी भी कंपनी का आता है, अच्छा ये बात एनआरपीस को मालूम है और ये बात जो है वो जनरल पब्लिक को भी अब पता चल गई कि आरडीए में जो लोकल क्रेडिट अलाउ नहीं है, एज पर स्टेट बैंक आरडीए बैंक अकाउंट जो है उसमें आप पैसे जो है वो हर कोई पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता। एक चंद मखसूस इंस्टीट्यूशन है कि जिन्हें अलाउ किया हुआ है कि आप आरडीए अकाउंट में जो है पैसे क्रेडिट कर देंगे, तो सीडीसी को जो प्रिविलेज दिया है, तो जैसे ही किसी कंपनी का डिविडेंड सीडीसी के पास आता है, ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे हम वो पैसे जो है क्लाइंट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देते हैं।
तो डिविडेंड के लिए भी क्लाइंट को जो परेशानी की जरूरत नहीं कि यार मुझे डिविडेंड मेरा नहीं आ रहा, मैं किससे बात करूं। आमतौर पर लोग कहते हैं मेरा डिविडेंड नहीं आ रहा तो मुझे किससे बात करनी है, मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, रजिस्ट्रार कौन है, मुझे वो क्या जवाब देगा। तो यू शुड कम टू सीडीसी। सीडीसी को आप आते हैं और इनफेक्ट आने की जरूरत भी नहीं होती है। अब तो ये प्रोसेस इतना स्मूथ लाइन हो गया कि पैसे हमारे पास आते हैं और डिविडेंड के पैसे वही नेक्स्ट डे क्लाइंट के अकाउंट में चले जाते हैं। इसी तरीके से बोनस एंटाइटलमेंट भी है, जो बोनस एंटाइटलमेंट होती है उसके शेयर्स जो है क्लाइंट के अकाउंट में क्रिएट हो जाते हैं। बाकी अगर थोड़ा इसको हम जल्दी जल्दी देखें कि बुक बिल्डिंग है, आईपीओ है, एलओआर सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी सीडीसी जो है वो एनआरपी को फैसिलिटेट करता है। इज एज गुड एज कि आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीडीसी के आने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरे काम में जो है वो थोड़ी सी देर हो रही है या मेरा काम जो है किसी पे कोई शो स्टॉप आ रहा है, नहीं, ऐसा लगेगा जैसे आप खुद जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी जवाद ने भी कहा था और मौलाना साहब ने भी इस बात की तरफ रोशनी डाली थी कि जीओपी इजारा जो में एक नया एवेन्यू आया है शरिया स्कीम में कि जीओपी इजारा में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके जो ऑप्शंस होते हैं जो अब मंथली बेसिस पे हो रहे हैं ऑप्शंस, जो पीएसएक्स जो है वो जीओपी ज्यादा इशू कर रहा है, उसमें भी एनआरपी जो है वो सीडीसी के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट एनी हैजल। आप सीडीसी को पैसे देते हैं और आप कहते हैं कि मुझे इस टेन्योर में पार्टिसिपेट करना है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हम आपके बिहाफ पे उस टर्मिनल में बिड डालते हैं ऑप्शन के टर्मिनल में, रिजल्ट जो आते हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटीज जो होती है वो आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाती है। अच्छा, एक जो सर्विस जो सीडीसी ने अभी रिसेंट पास में शुरू की हुई है कि जो व्हाट्सएप सर्विस तो हमारे पास एनआरपीज के लिए थी, अब हमने जो है एलओआर लेटर ऑफ राइट्स और आईपीओ सब्सक्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप पर एक्टिवेट कर दिया है। क्या व्हाट्सएप के थ्रू जो है अभी आप आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं और एलओआर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, चेंज ऑफ ब्रोकर, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ए ब्रोकर के साथ है और आप कहते हैं कि हमें ए ब्रोकर की सर्विसेज से जो है सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो यू कैन सिंपली चेंज योर ब्रोकर फ्रॉम ए टू बी। एक प्रोसेस है, वो आपको डिटेल गाइडलाइन हमारी वेब पे अवेलेबल है। आपको ए ब्रोकर के साथ सर्विस में मजा नहीं आ रहा, उस ट्रेडिंग में आपको इश्यूज हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, आप ब्रोकर चेंज कर लें, ए से बी कर लें। ये फंक्शन भी आपको एनआरपी ट्रेडिंग में सीडीसी ने अवेलेबल किया हुआ है। रिपोर्ट्स एंड लेजर्स, काफी डिटेल रिपोर्ट है हमारे पास, काफी डिटेल लेजर्स है। नॉर्मली जो हमारा एनआरपी है वो कहता है कि यार मैं बाहर होता हूं तो जो बाहर के सिस्टम्स हैं, जो बाहर के कंट्रीज है, उसमें जो है ये रिपोर्ट जो हमें चाहिए होती है। सो अप टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अप टू द बेस्ट अप्रोच हमने रिपोर्ट्स तैयार की हैं कि जो क्लाइंट को उनकी डेन की पोजीशन, उनकी मार्केट वैल्यूज, उनके लेजर बैलेंसेस, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या प्राइसेस हैं, तो रिपोर्ट्स में कैप्चर होती है, वो डेन पे अवेलेबल होती है। इट डजंट टेक टाइम, जैसे ही डेन खत्म होता है, जैसे ही मार्केट ट्रेडिंग आवर्स खत्म होते हैं, फंक्शन खत्म होता है, रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे अपलोड हो जाती है। हैंडलिंग ऑफ ब्रोकर कमीशन, सीडीसी में जो एनआरपी के लिए एक और खास बात है कि आपने बस ब्रोकर के साथ कमीशन डिसाइड किया है, उसके बाद ब्रोकर को कमीशन की पेमेंट करनी है, ट्रांजैक्शन चार्जेस की जो पेमेंट करनी है, जो नेशनल क्लीयरिंग के चार्जेस है, वो सीडीसी आपके अकाउंट में जो है वो डेबिट कर लेता है और पेमेंट पे जो है वो सीडीसी आपके बिहाफ पे ब्रोकर को, नेशनल क्लीयरिंग को कर लेता है। आपको इसमें जो है वो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन ट्रेडिंग, बाकी जो भी ऑपरेशन हुआ वो सीडीसी एनआरपी के बिहाफ पे परफॉर्म कर रहा है। डेडिकेटेड कॉल सेंटर है हमारा जो मंडे टू फ्राइडे जो है वो फंक्शनल है और वो आप बिजनेस आवर्स में कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो भी हम कह रहे थे कि पैसे वापस चाहिए, रिपेट्रिएट करने पैसे, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मैं यहाँ पे फिर हाईलाइट कर दूं कि लोग कहते हैं कि यार पैसे लेके चले जाते हैं, पता नहीं पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। सो इसको ही हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस पॉइंट पे कि आई रिपीट कि जैसे ही किसी को पैसे चाहिए, अक्सर क्लाइंट आते हैं हमारे कस्टमर सपोर्ट में कि मैंने पैसे दिए थे मुझे वापस चाहिए, तो क्या मुझे इजीली मिल जाएंगे? तो हम कहते हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा पैसे आपको इजीली वापस मिल जाएंगे। आपको जस्ट हमारा जो एक वेब पेज है, जो हमारा बेसिस का ऑप्शन है सीडीसी एक्सेस का, आगे आएगा, आपको अपना लॉगिन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, अपनी विड्रॉल की एप्लीकेशन डालनी है। आपने एप्लीकेशन दी, डेट पे हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट आपकी आई, अगर आपके पैसे मौजूद है, फंड्स जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये चूंकि हम एक शरिया स्ट्रीम को आज फोकस कर रहे हैं, तो हम कुछ शरिया उसकी प्रोडक्ट्स की भी बात कर लें कि जो एनआरपीज के लिए जो है वो शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग सेटलमेंट है, कि जो शरिया प्रिंसिपल्स पे जो है ट्रेडिंग, जो शरिया उसूल है, शरिया कवानीन है, उसके मुताबिक जो कन्वेंशनल के साथ साथ शरिया भी जो है वो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और उसमें आपको जो है शरिया ब्रोकर्स भी अवेलेबल हैं कि जिनके पास जो है सिस्टम में शरिया है और शरिया प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। बुक बिल्डिंग होती है, आईपीओ पार्टिसिपेशन होते हैं,
और इसमें जो शरिया बैक कंपनीज है जो शरिया एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव करते हैं उनमें भी आप जो है बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके आप आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि एवाई इंडेक्स है जो शरिया कंप्लायंस सिक्योरिटीज है वो आपके अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए। तो टू फुल्ली ओन शरिया के मतलब शरिया एडवाइजरी ओन करता है उस फ्रेमवर्क को, उसके मुताबिक आप जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लास्ट में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जीओपी ज्यादा सुकूक्स में भी आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनआरपी जब अगर उसमें उसके ऑप्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और सेकेंडरी मार्केट में भी पार्टिसिपेट ट्रेडिंग कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, ये हमारा जो है वो सीडीसी एक्सिस जो वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेब पोर्टल भी है। और अब तो ये काफी जो है डिटेल्ड, जो लोग अगर इसको यूज करते हैं तो वो इससे आशना है, इससे अवेयर है कि इसमें जो है अब काफी डिटेल्ड चीजें आ गई हैं। और यहाँ पे तो जो है वो सारी अदर फंक्शंस में लिखे हुए जो सीडीसी के अदर फंक्शंस हैं वो भी आप सीडीसी एक्सेस के थ्रू जो अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर वेब पोर्टल में जो हमारा डीएसएस का ऑप्शन है, हम चूंकि फोकस कर रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स को, तो हमारे वेब पोर्टल पे जो डीएसएस है, डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विस डीएसएस का ऑप्शन है, वहां पे सारी चीजें जो है आप मुलायजा कर सकते हैं, आपको सारी चीजें वहां पे नजर आएगी। जो जो भी हमने फंक्शनलिटीज की बात की, चेंज ऑफ ब्रोकर, आईपीओ सब्सक्रिप्शन, विड्रॉल रिपोर्ट, सब आपको जो है उस एक अम्ब्रेला में नजर आएंगी। व्हाट्सएप सर्विस, रिसेंट पास से पहले लोग कहते थे कि यार आप लोग के पास व्हाट्सएप सर्विसेज नहीं है। सो हमने जो है वो सीडीसी ने जो व्हाट्सएप सर्विसेज लॉन्च की है और वेरी इजी, अब आपके जो है वो हैंडफोन में आपके पास सारा डाटा है, आपने जस्ट सब्सक्राइब करना है अपने अकाउंट को सीडीसी में और उसके बाद जो चीजें लिखी हुई है कि आप उसमें अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट दी हुई एनआरपी ने और आप कहते हैं कि मेरा अकाउंट अभी तक क्यों नहीं खुला, उस पर ऑप्शंस हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यू लेट द स्टेटस कि मेरा अकाउंट का क्या स्टेटस है। ट्रांजेक्शन आप उसमें इनिशिएट कर सकते हैं, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस हैं। व्हाट्सएप सर्विस की हम और एनहेंस कर रहे हैं, ये इनिशियल फ्लेवर्ड है और वी आर होपफुल कि नियर फ्यूचर में जो है व्हाट्सएप में हम सारी चीजें जो है वो एक्टिवेट कर दें। आरडी अकाउंट की स्टैटिस्टिक्स है और इसमें इस वक्त जो है हमारे पास 14,511 अकाउंट होल्डर्स हैं जो एनआरपी अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे पास सीडीसी के पास। और जो टोटल वर्थ है, जो पैसे हमारे इन्वेस्ट हुए हैं, वो जो है वो 19.4 बिलियन की हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है। 14,511 अकाउंट्स हैं जो एज ऑफ मार्च 31 हमारे पास खुले हुए हैं और 19.4 बिलियन की हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। और इसको कन्वर्ट करें तो अराउंड 69.3 मिलियन यूएसडी डॉलर्स इसकी वर्थ है। और इसमें 4 इस्लामिक बैंक्स हैं कि जो हमारे साथ ऑन बोर्ड है और 35 जो है वो शरिया ब्रोकर्स हैं कि कन्वेंशनल के साथ साथ शरिया स्ट्रीम में भी जो हमारे साथ एनआरपी जो है इन्वॉल्व है और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। ये पिक्चर है कि हमने अवेयरनेस के लिए जिस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है, हमने आज के वेबिनार के इससे पहले भी हम 2020 से जो है वो वेबिनार्स कर रहे हैं और अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, एक सीडीसी एक फाइनेंशियल हब है, सीडीसी एक हब है कैपिटल मार्केट का इंफॉर्मेशन का, आप हमारे थ्रू लाइज ऑन करें। जिसको जो मुश्किल है, जो समझते हैं कि इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट में स्टॉक में इसको मुश्किलात होगी, लेकिन नहीं, सीडीसी इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब हमारे थ्रू रूट करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। सो वी एक्नॉलेज कि आपको जो है ऐसा ही लगेगा कि जिस तरीके से आप खुद ही जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप अपने हाथ से अकाउंट खोल रहे हैं, यानी कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूर बैठ के जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। यू जस्ट फील लाइक यार मैं तो अपने जो है इर्द गिर्द में मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऑल्दो यू लिव इन अब्रॉड, आप कितना भी दूर रह रहे हैं। वैसे तो एनआरपी पे, रोशन डिजिटल पे ब्रीफ सी हमने स्पीच या दे दी, प्रेजेंटेशन भी दे दी, लेकिन कुछ क्वेरीज होंगी किसी जगह सवाल अगर होगा तो ये हमारी डिटेल यहाँ पे लिंक है वेबसाइट का cdcpark.com, इस पे रोशन डिजिटल @cdcpark.com पे भी आप ईमेल कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है आरडीए की, आरडीए का व्हाट्सएप नंबर भी है और यू कैन जॉइन अस ऑन सोशल मीडिया एज वेल। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका सवाल हो, सो यू मोर देन वेलकम टू यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Let's move towards Mr. Mohammad Asif Saab from National Clients Company Limited. Sir, we are running out of time. I would like you to just jump right into it. Please बताइए हमें कि हमारे participants के लिए आज आपके पास क्या information है।
जी थैंक यू वेरी मच फहद एंड थैंक यू डॉक्टर कैसर मिस्टर एंड PSX फेलो। और बस आई क्विकली गो थ्रू, क्योंकि बहुत सारे हमारे फेलो कोलीग्स जो हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में जो है अपना PSX का रोल और CDC का रोल डिटेल कर दिया है, तो जस्ट आई क्विकली गो। कि देखें, जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया था, NCCPL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2001, और जो NCCPL की मेन वजूद में आने का मकसद ये था कि डिजिटाइज वे में जो स्टॉक एक्सचेंज की और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो CDC के दरमियान है, तमाम ऑटोमेट किया जाए। एट दैट टाइम 3 सेपरेट स्टॉक एक्सचेंजेस वॉज कराची और इस्लामाबाद थे, और NCCPL के इनकॉर्पोरेशन के बाद तीनों एक्सचेंज की जो ट्रेड्स हैं वो एज अ नेट बेसिस पे एज अ सिंगल पे एंड कलेक्ट ऑब्लिगेशन हो रही। और डिस्पाइट जो NCCPL का क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के अलावा जो और मेन रोल है, ना सिर्फ ये कि NCCPL आज ओवर द ईयर ऑफ 20 KYC इशुएंस की जिम्मेदारी NCCPL की है। और जिस तरह हमने हमारे फेलो कलीग ने जिक्र किया, एक आम इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए यूआईएन भी जो NCCPL इशू करता है, और जो कि एक हर RDI कस्टमर या लोकल कस्टमर का जो CNIC है इज ट्रीट एज हिज यूआईएन। यूआईएन के अलावा NCCPL ने ओवरऑल जो एक बड़ा मेजर कैपिटल मार्केट की जो कैपिटल गेन टैक्स की रिक्वायरमेंट थी, NCCPL ऑल्सो ऑथोराइज विथहोल्डिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और NCCPL ना सिर्फ तमाम कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स बल्कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक कमोडिटी के ब्याह पे भी जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है। वो अगली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा NCCPL का एक जो मेजर रोल है, बीइंग अ सेंट्रल काउंटर पार्टी, कि जो तमाम इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड्स होती हैं और ब्रोकर्स जो प्राइमरी ट्रेड करते हैं, और ब्रोकर्स की आपस में एक जो बायर है या सेलर, उनकी पैसों की और शेयर्स की लेन देन की NCCPL तमाम सेटलमेंट को गारंटी करता है। ये डिटेल अगेन जो हमारे फेलो जवाद ने और CDC मोहसिन साहब ने बहुत डिटेल में ब्रीफ किया है कि NCCPL बीइंग का सेंटर ऑफ द इकोसिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज से जब वो ट्रेड्स है वो तमाम के तमाम NCCPL को जो है वो जब एक आम ट्रेड डे पे प्रोसेस रिसीव होती है और फिर T+2 पे CDC में डिपॉजिटरी और बैंकों के दरमियान जो कैश कलेक्टिव बेसिस पे सेटल होती है। हमारा जो आज की इस मीटिंग में स्टार्ट में जवाद साहब ने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि शेयर्स और कन्वेंशन इक्विटी के अलावा जो रिसेंटली GDS गवर्नमेंट डेट सुकूक का एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें भी NCCPL ने लास्ट 1 ईयर इज असाइंड द रोल कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइमरी ऑक्शन में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी NCCPL की है। उसके अलावा जो एडवांस बिट कलेक्शन की जो है ऑन बिहाफ ऑफ वेदर जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। एक ब्रोकर जो है, हम RDA की एग्जांपल लें तो अगर किसी RDA इन्वेस्टर ने GDS में इन्वेस्ट करनी है तो थ्रू देयर बैंक जो है NCCPL वो कैश कलेक्ट करता है, और फिर सब्जेक्ट टू उस इन्वेस्टर के लिए सुकूक में अगर उसकी प्राइमरी ऑक्शन में बिट्स एक्सेप्ट हो गई है तो फिर NCCPL CDC के अकाउंट में जो शेयर्स ट्रांसफर करने की भी जिम्मेदारी है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो NCCPL की इंस्ट्रक्शन पे ही CDC उस RDA इन्वेस्टर के अकाउंट में वो GDS सुकूक ट्रांसफर करता है। और इवन GDS में ना सिर्फ ये कि NCCPL की जो रोल, अगर कोई इन्वेस्टर ने GDS में वेदर 3 मंथ्स या 6 मंथ की कूपन पेमेंट हो या मैच्योरिटी पेमेंट पे भी NCCPL का ही ये रोल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने असाइन किया है कि डायरेक्टली उस इन्वेस्टर के अकाउंट में सब्जेक्ट टू जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो डिडक्ट करके उन इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कैश ट्रांसफर हो जाता है। और इसी तरह अगर वो वही इन्वेस्टर्स GDS मार्केट में कुछ सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहें अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर से, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी NCCPL की है कि थ्रू देयर CDC कुलीग जब दे आर डेफिनेटली जो है प्राइमरी सेटलमेंट की जिम्मेदारी है CDC की, बीइंग RDA अकाउंट मेंटेन करते हैं। NCCPL उस RDA इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे CDC से कैश रिसीव करता है, और सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर सुकूक में जो ट्रेड करेगा NCCPL उस इन्वेस्टर के अकाउंट में शेयर ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जैसे हमने स्टार्ट में जो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है कैपिटल मार्केट का, तमाम कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स की वेदर वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रेड करते हैं और या रिसेंटली GDS में ट्रेड करते हैं, NCCPL इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कि उन तमाम इन्वेस्टर्स की
ये तीनों सेगमेंट की ट्रेड्स का कैपिटल गेन कंप्यूट करना, उसको डिटरमाइन करना, उसको उनके रिस्पेक्टिव ब्रोकर्स या सीडीसी बिंग आरडीए उनकी सीजीटी लायबिलिटी से कलेक्ट करता है, और फिर ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स जो है एनसीसीपीएल जो है वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एफबीआर को ईयर एंड पे डिपॉजिट करता है। और ईयर एंड पे एक आरडीए इन्वेस्टर हो या एक लोकल इन्वेस्टर हो, उनकी तमाम जो टैक्स लायबिलिटी है जो जमा की गई है उसका बाकायदा एनुअल सर्टिफिकेट भी एनसीसीपीएल की जिम्मेदारी है, वो इशू करता है। और ना सिर्फ ये कि ये इस सर्टिफिकेट की बेसिस पे एफबीआर का ये पूरा एक जो वेल्थ और रिकॉर्डिंग वो मेंटेन करते हैं कि फिर जो है सेपरेटली किसी भी इन्वेस्टर्स को सेपरेटली कोई डिटेल मतलब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी सर्व एज अ फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ दैट इन्वेस्टर। इसमें वन ऑफ द ब्यूटी जो कैपिटल गेन टैक्स की है, ये एक एडवांटेज है कि अगर कोई एक आरडीए इन्वेस्टर ने इक्विटी सेगमेंट में किसी स्क्रिप्ट में कैपिटल गेन हुआ है, और जिस तरह जवाब साहब ने स्टार्ट में बताया वो ईटीएफ है उसका लॉस है, या म्यूचुअल फंड में उस इन्वेस्टर का कोई लॉस है, तो एनसीसीपीएल जो है उस तमाम टैक्स लायबिलिटी को आपस में नेट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ जो नेट गेन है सिर्फ वही ईयर एंड पे जो है वो एफबीआर को डिपॉजिट करता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द आरडीए इन्वेस्टर्स के लिए है कि देर तो ग्रॉस एप्लीकेशन नहीं है, आपका नेट एट द एंड ऑफ द नेटिंग का बेनिफिट्स पे अवेलेबल होता है। इसमें हमने जो कस्टमर जो एनसीसीपीएल की एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है कि आज वी फील के जो ऑनलाइन कस्टमर खासकर आरडीए कस्टमर जो है अपने वेदर ट्रेडिंग की डिटेल हो या उनके अकाउंट्स किन ब्रोकर्स के साथ किस सीडीसी के साथ हैं, या फिर उनकी जो ट्रेडिंग वेदर म्यूचुअल फंड में जीडीएस में या इक्विटी सेगमेंट की हो, थ्रू एनसीसीपीएल की एक यूआईएस एक्चुअली यूआईएन इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 बेस्ट वेब सर्विस है। दे सिंपली दे कैन रजिस्टर्ड बाय सबमिटिंग एक रिटर्न फॉर्म डिजिटली जो कि डिपॉजिट किया सकता है, और उस रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे वो इन्वेस्टर आरडीए जो है अपने तमाम कैपिटल मार्केट की ट्रांजैक्शन हो, म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन हो या इक्विटी मार्केट की या पीमेक्स की, वो कंसोलिडेटेड व्यू में पूरा साल वो एनी टाइम वो दे कैन व्यू ना, उसमें बाकायदा सीजीटी की डिटेल अवेलेबल है और रेस्ट ऑफ द सेगमेंट की डिटेल अवेलेबल है। और इसके अलावा एनसीसीपीएल की एनसीसी कनेक्ट भी सर्विस अवेलेबल है जो कि उनको सेम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो मैं मुख्तसरन मैंने कोशिश की कि क्योंकि डिटेल सारी हमारे कोलीग पीएसएक्स और सीडीसी बयान कर चुके, तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ साहब एंड ऑल द एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। आज की डिस्कशन में हम लोगों ने आरडीए से रिलेटेड, ईटीएफ से रिलेटेड, शरिया से रिलेटेड, ग्रीन बॉन्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप लोगों के जहन में बाद में आए इस इवेंट के, तो फील फ्री info@psx.com.pk पे अपनी क्वेरी शेयर कर लीजिएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पीएसएक्स से रिलेटेड है या सीडीसी से, एनसीसीपीएल से या किसी और एक सवाल मैं करना चाहता हूँ ये सीडीसी साहब से, क्या नाम है, ये जो एग्जिस्टिंग अकाउंट जो खोला हुआ है, जिसके पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है सीडीसी में, मैनी अकाउंट है, तो वो कैसे हम रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए, तो हम वी हैव टू मेक अनदर अकाउंट रिलेटेड रोशन डिजिटल अकाउंट, एक ये सवाल है। फिर उसका जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, तो वो यूएस डॉलर में होगा, वो किस रेट से होगा? सपोजिंग मैंने बैंक में पैसे जमा किया सीडीसी से 1 लाख रुपए अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से, वो तो रुपए में गया, तो जब आप उसने वापस पैसा मांगा ओवरसीज पाकिस्तानी ने, तो वो फिर आप डिफरेंट रेट से डालेंगे, या यू कैन एक्सप्लेन दैट प्रोसेस प्लीज। अच्छा देखिए, इसमें एक हम चीज क्लियर कर लें कि एज पर करंट फ्रेमवर्क जो हमारे पास से जो स्टेट बैंक ने हमें दिया हुआ है कि इफ यू हैव एन अकाउंट, एक्सिस्टेंट अकाउंट, वो आरडीए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, और आरडीए यू हैव टू ओपन अ न्यू अकाउंट, क्योंकि आरडीए के लिए आपके पास जो है रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट पहले होना चाहिए, टू बैक्ड बाय रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आपका रोशन डिजिटल होगा, उसके थ्रू ही आप जो है सीडीसी में रोशन डिजिटल इन्वेस्टर अकाउंट आप ओपन करवाएंगे। एंड सेकेंडली कि जो आपने कहा कि पैसे कैसे आएंगे, तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट आपका जो इस वक्त ऑपरेट हो रहा है बैंक का, तो ये जो पीकेआर कैटेगरी अकाउंट है, पैसे हमारे पास पीकेआर में ही आते हैं।
और हम जब पैसे वापस भेजते हैं तो चूंकि वो पीकेआर करेंसी वाला अकाउंट है तो हम पैसे भी पीकेआर में ही देते हैं। उसके बाद जो रेमिटेंस करना है वो इट्स अप टू बैंक एंड यू। हम जो है वो पीकेआर ही इस वक्त जो है पैसे ले रहे हैं, वो पीकेआर में ही पैसे वापस क्लाइंट के अकाउंट में दे रहे हैं। मैं सारे सुनने वाले के लिए मैंने, क्योंकि ये सवाल हम मेरे पास आता रहा था कि हमारा तो अगर हम डॉलर में कैसे मुझे वापस मिलेगा। सो आई नो द वे दैट आपका पीकेआर से जब आप ट्रांसफर करेंगे यूएस डॉलर में या दरहम में या पाउंड में, तो वो उस दिन वो रेट से आपको आप ले लें, वहां से आप विड्रॉ कर लें। आई जस्ट वांट फॉर द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you very much, sir. शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो ये वेबिनार था इसकी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के यूट्यूब चैनल एंड देन फर्दर बाकी तमाम चैनल्स पे वहाँ से क्रॉस शेयर की जाएगी। तो अगर आप इसको वापस देखना चाहें, कोई चीज़ मिस कर गए, तो वहाँ पे आप देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, ऑल द पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स। यू होपफुली यू हैव अ गुड डे। 1 मिनट इकबाल नसीम साहब। मैं तमाम जी, पैनलिस्ट का और फैद आसिफ साहब आपका खासतौर से, जनाब मोहसिन रजा वसाया साहब, जवाद हैदर शमसी साहब एंड मौलाना सैयद मजहर अब्बास एंड मोहम्मद आसिफ साहब, डिटेल में आपने तमाम इंफॉर्मेशन दी हमारे तमाम जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए। और ये रिकॉर्डेड भी है, तो आप कोई भी इसको सुन सकता है। और ये यकीनन ये बहुत तमाम लोगों तक पहुंचेगा। हमारे तमाम मेंबरान जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, यूएसए में, ये तमाम में, तो उन तक पहुंचेगा ये। और उसके बाद मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये बहुत आसान सा प्रोग्राम है। इसमें आपने सिर्फ अकाउंट खोलना है, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना है, वो कन्वर्ट करना है उसको सीडीसी में, एंड देन उसके बाद आप जो भी शेयर्स बाय करना चाहें, बकेट ऑफ शेयर्स लेना चाहें, म्यूचुअल फंड में जाना चाहें, आप जा सकते हैं। इस्लामिक शरिया फाइनेंस में जाना चाहें, आप जा सकते हैं उसके अंदर। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर कैसर अनीस साहब का, हमारे ऑनरेरी वाइस चेयरमैन एंड फाउंडिंग प्रेसिडेंट, जिनकी अनथक मेहनत है कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की करता रहे। और मैं इस फोरम से मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे मार्केट में बहुत से लोगों से बहुत आगे है। जिस तरह से आप लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है और प्रोटेक्ट किया हुआ है, और डिजिटली सेफ ये प्रोग्राम आप लोगों का है, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं कि आप तमाम लोग, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और दीगर अदारे हैं, और इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, सारा का सारा। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप तमाम लोग जुड़े रहें पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के फोरम से, और जो अटेंड कर रहे हैं उनको मैं दावत दूंगा कि वो हमारे मेंबर बने और इस कार्यक्रम में आप आगे अपना हिस्सा पाकिस्तान के लिए अदा करते रहें। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, डॉक्टर साहब कुछ अल्फाज आप कहें और प्रोग्राम को रैप कर दें। जी, बहुत कंप्रेसिव प्रोग्राम था ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बना, जिसमें आपने सबको बुलाया, स्टेट बैंक से लेकर के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के एनसीसीपीएल को लेकर के सीडीसी से, ये पूरा सबको समझ आएगा किस तरह ये सब इंटरकनेक्टेड है, जो कि मेरा ख्याल 90% लोगों को नहीं पता था। एंड आई थिंक विल कंटिन्यू टू डू दिस अगेन। तो लोगों की, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर हमें बढ़ाने हैं। आपने जो कंपटीशन का काम शुरू किया ना, तो ये हमारा पॉइंट है कि इसको आगे बढ़ाएं। लोगों को जितना तजुर्बा होगा उतने लोग आपके पास आएंगे। 3,76,000 आपके इन्वेस्टर हैं, इसको मिलियंस में होना चाहिए, और ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल चाहता है ये मिलियंस में जाए, ताकि लोगों को, और लोग सिर्फ इसलिए नहीं आते, उनको पता नहीं है कि हम कैसे ये डील करें। अब रोशन डिजिटल अकाउंट में $10 बिलियन अगर आ गया, वो भी मैंने बहुत गवर्नर साहब से कहा कि बैंकों में समझाएं कि कैसे ये चीज हो सकती है आसानी। तो आपने ये जो मॉडल बनाया है, ये फ्रीक्वेंटली प्रमोट होना चाहिए, और इसको 1 मिलियन का टारगेट दे करके हम इन्वेस्टर लेके आए, तो ये पाकिस्तान का भी फायदा है, सारी ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेस्टर का बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इकबाल साहब, मोहसिन साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, जवाद अहमद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। I hope you all have a good rest of the day. Thank you everyone and take care. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.